Hello. اگر یہ شور جاری رہے گا تو ہم اپنی پروسیڈنگ شروع نہیں کر سکیں گے. پلیز ریلیز خالی کر دیجیے, پیچھے جگہ ہے وہاں جا کے بیٹھ جائیں, ہمیں پروسیڈنگس کو شروع کرنے دیں پلیز. Once again, Assalamu alaikum everybody and welcome to this presentation by Pakistan Tehreek-e-Insaf about the biggest ever theft, fraud of vote that has taken place in the history of this country. We welcome all of you, we welcome members of the local media, we welcome members of the international media, we welcome members of international organizations who come here today, and in particular, it is my pleasure to extend a very warm welcome to those people who have come from various parts of the country whose vote was stolen in the thick of the night. Special welcome to Begum Rehana Saiba, who has travelled all the way from Sialkot. She's the new Iron Lady of PTI. The way she defied the atrocity and ferocity of the state is indescribable in words. We pay a special homage to her. I also extend a very warm welcome to Salman Akram Sahab, who's travelled from Lahore, to Mr. Ali Zafar Sahab, to Abu Zar Niazi Sahab, and he particularly stressed that I must take the word Niazi with his name. So Abu Zar Niazi Sahab and Intizar Panjota Sahab. You're all welcome here. As I start the proceedings, I will be talking in Urdu, and parts of my speech, I shall adapt in English, for the convenience of members of the international media that is present here. 2024 کا سال جہاں اس لحاظ سے خوش آئند ہے کہ اس میں پاکستان میں نیشنل الیکشنز منعقد ہوئے جو کہ بار ڈیلے کیے گئے تھے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن میں, رول آف لا کی وائلیشن میں. وہاں 2024 اس وجہ سے بھی یاد رکھا جائے گا کہ اس سال الیکشن کے دوران پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ووٹر فراڈ وہ انفلیکٹ کیا گیا پی ٹی آئی کے خلاف اور پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کے خلاف. ہمارے جو اندازے کے مطابق جو اس وقت تک ہم نے کمپائل کیا ہے اس کے مطابق 177 سیٹوں میں سے جو ہماری ہونی چاہیے تھی 92 صرف ہمیں دی گئی ہیں کے مطابق, اور ہم نے کمپائل کیا جو ہے اس کے مطابق 177 سیٹوں میں سے جو ہماری ہونی چاہیے تھی 92 صرف ہمارے دی گئی ہیں کے مطابق, اور ہم نے کمپائل کیا جو ہے اس کے مطابق 177 سیٹوں میں سے جو ہماری ہونی چاہیے. ڈیٹا موجود ہے کہ وہ لی گئی ہمارے ساتھ جو آپ کے سامنے پریزنٹ کیا جائے گا, اور 39 سیٹس وہ ہیں جن کے بارے میں ڈیٹا جو ہے وہ کمپائل ہو رہا ہے, اور ان the next 24 hours وہ ڈیٹا بھی ہمارے پاس اویلیبل ہوگا. یہ جو ڈیٹا ہم کلیکٹ کیا ہے اس کے ہم نے 3 بینچ مارکس ہیں, ان کے اوپر ہم نے ان کو یوز کر کے ہم نے یہ ڈیٹا کیلکولیٹ کیا ہے. ایک ہے جو کہ ڈسکرپنسی ہے بٹوین فارم 45 اینڈ 47, جو درجات فارم 45 میں ہیں وہ فارم 47 میں نہیں ہے. یہ پہلا بینچ مارک ہے. دوسرا بینچ مارک جو ہے وہ ہے
नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली में वोट जो पोल हुए हैं उनमें फर्क जो है वो इतना ज्यादा है कि बाद दफा नेशनल असेंबली में प्रोविंशियल असेंबली से ज्यादा वोट जो है वो पोल हुए हैं। तो ये दूसरा बेंचमार्क हमारे लिए था। और तीसरा बेंचमार्क जो हमने कंसिडर किया है वो है कि नंबर ऑफ रिजेक्टेड वोट्स जो है वो इन सर्टेन केसेस जो है वो मार्जिन ऑफ विक्ट्री से भी ज्यादा है, यानी कि जो जितने नंबर ऑफ वोट्स के ऊपर कोई शख्स हारा है, जो रिजेक्टेड वोट्स हैं उसके वो उससे ज्यादा है। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था और जो हमारी प्रोसीडिंग्स जो है उनका हम बाकायदा आगाज करते हैं और मैं समाविया साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अब टेक ओवर करके मामलात को आगे बढ़ाएं। समाविया। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और बेशक तुझी से मदद मांगते हैं। सबसे पहले हमारे तमाम ऑनरेबल मेंबर्स, हमारे मीडिया पर्सनल्स, आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आज पीटीआई के कैंडिडेट्स को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। हम सबसे पहले एक वीडियो प्ले करेंगे जिस वीडियो में आपको ये दिखाया जाएगा कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ जो है वो रिगिंग की गई। तो प्लीज आइए देखते हैं वीडियो नंबर 1। फरत काइंडली वीडियो प्ले कर दीजिएगा प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। हम इस टाइम ऑफिस में मौजूद हैं। ये सारा अमला साहब दफ्तर से होकर भागे और दफ्तर किसी और के कंट्रोल में है, जो रिजल्ट नहीं हो रहा और कचरे के ढेर में आरोप साहब के ऑफिस में ये बैलेट पेपर्स जो हैं ओपन पड़े हैं अपनी वीडियो भी चलवाएं से अभी चलवाएं। ओके। थैंक यू जी। मेरी प्लीज एक रिक्वेस्ट होगी तमाम लोगों से, काइंडली स्क्रीन के आगे से हट जाइए। जिस पर्पस के लिए आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, बराए मेहरबानी वो फुलफिल होने दीजिए। काइंडली स्क्रीन के पास से सब हट जाइए। I would request everyone, please स्क्रीन के पास से हट जाइए सब। आप लोगों को प्लीज ये अंदाजा होना चाहिए कि आज इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पे सिर्फ आपकी कवरेज के लिए आया है। काइंडली उनको मौका दीजिए ताकि वो उन्हें पता लग सके कि आपके साथ रिगिंग किस अंदाज में हुई है। इसलिए स्क्रीन के सामने से सब हट जाइए प्लीज। थैंक यू। Now I would request शाहबाना गुलजार साहिबा कि वो आए और इंग्लिश में प्रेजेंटेशन दें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज स्टेज के जो राइट साइड पे लोग हैं, आपसे रिक्वेस्ट है साइलेंस की। राइट साइड ऑफ द स्टेज कोई नहीं चुप होगा, आज सबका इलेक्शन है। प्लीज राइट साइड ऑफ द स्टेज साइलेंस। थैंक यू। प्रेजेंटेशन प्लीज ऑन कीजिएगा। हम कर लेंगे, दैट्स आवर प्रॉब्लम। Alright, right now I'm addressing the international media and that's why I'm going to be talking in English. Audience. The second half of the presentation is going to be in Urdu and Simabia will present. The first slide, आप जरा देखिएगा जी, हमें we got 1.25 million votes in Karachi, and out of the seats we did not win a single seat. 1.25 million votes only in the city of Karachi. Jamaat-e-Islami received 700,000 votes
and not a single NA seat in Karachi. Punjab, we got 13.6 million votes and we were given 55 seats. This is a joke with the people of Pakistan. Next slide, please. Have a look. This is the situation of the National Assembly of Pakistan at 3 a.m. PTI had 154 lead. And please bear in mind that at 2 a.m. is when the counting should have stopped and the RO should have given his Form 47. ये right side of stage या चुप कर जाएं या निकल जाएं. Please, इनको कहीं बाहर जाएं. चुप नहीं कर सकते तो सारे बाहर जाएं यहाँ से. जाएं यहाँ से. Please, we don't need you. Out. Next slide please. ये जरा detail देखिए. Left slide ये देखिएगा. Again 3 a.m. PTI Independence 154, PMLN 47, People's Party 47, NQM 4, and JUI 4. Next slide please. The countrywide robbery that took place via Form 47 in violation of Article 92 of the Election Act. Just have a look at all the provinces. From Khyber Pakhtunkhwa, we were winning 42 seats and the ECB stole ours and gave us 37. From Islamabad, we were winning 3 and all 3 were stolen from us. In Punjab, we were winning 115 and 55 were given to us. These are presents, by the way. In Balochistan, please, previous slide. In Balochistan, we were getting 4 and we only got 1. Next slide, please. Just look at the sheer scale of the rigging. I'm just going to go through a few constituencies, so please bear with me. These are worth your time. This is the kind of naked fascism that took place on the 8th of February. It was not PTI's mandate that was stolen. It was the people's mandate that was stolen. They take our money, they take our Ehsaas card, they take our Kisan card, they take everything that belongs to the people of Pakistan and then they steal their votes. This is what they've done to Pakistan in one day. Please go back to the previous slide. Thank you. If you look at NA 241, we were winning as per Form 45 with 78,000 votes. And guess what they do to us in the end? We lost. Next slide, please. In NA 57, we were winning with 100,000 votes. This is till 3 a.m. in the morning. And in the morning, once the time has run out for anybody to tabulate Form 47, they gave us 44,000 as a present and ensured that PMLN wins. In the next constituency, same thing. We're winning with 154,000 and in the end they gave us 52,000. They stole 100,000 votes. All the details are here in front of you. Next slide, please. Next slide. Next slide, please. Thank you. Next. Button was here? I know. Please, आगे जाइए. Okay. 234 देखें जी. On PTI, we're winning with 47,000 votes against NQM. And our vote is reduced to less than 4,000 in a flash of a second. Next slide, please. I'm going to stop here for a moment and I'm going to ask the team to run the visuals by you. Whatever I've explained, we have it all in PDF form. Please have a look and see the kind of theft and the kind of rigging that took place. And let it be remembered, Form 45 is the authorized form given by the Election Commission of Pakistan to the presiding officer, and the presiding officer signs it in front of the polling agents. Those forms are then tabulated and created into one Form 47. Have a look at the PDF document, the graph please. Open up the graph, ladies. Please start scrolling through them. Have a look at all these NAs. That's 47, 48, 49. Atak 50. Rawalpindi 53. Taxila 54. Rawalpindi 55. Rawalpindi 56. Rawalpindi 57. Chakwal 58. Jhelum 60, sorry. Gujarat 64. Sialkot NA 71. Tobatek Singh NA 106. Lahore National Assembly 126. Lahore National Assembly 128. Pakpatan National Assembly 139.
Multan National Assembly 148. आगे जाते जाइए जी. This is just an example of the horrific sheer scale of rigging and voter manipulation that took place once the votes had been cast. There are dozens of examples of our polling agents being thrown out of polling stations. They were not signing the documents in front of our polling agents. There are multiple videos which you will see right now at the kind of violence that took place when our polling agents tried to secure the Form 45. All this data is available to you. We have already distributed some documents to the international media and the local media. After this, when Mavia is done with the Urdu part of the presentation, we shall also be sharing with all of you 2 links. Those links give you copied PDF copies of Form 45s of all the people whose mandate was stolen. In addition, we have given you a breakdown of each and every polling station and the votes that were cast polling stations. So we've done our homework, and I can assure you our lawyers are going to have a field day with this. Thank you so much. Thank you so much, Chandana. Thank you, जी. पाकिस्तान में इससे पहले भी पाकिस्तान की तारीख रही है कि कभी भी पाकिस्तान में जो है वो धांधली के बगैर कोई इलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन इस बार तो एक हद जो थी उसको भी क्रॉस कर दिया गया. धांधली नहीं बल्कि धांधला हुआ, और उसकी बेहतरीन एग्जाम्पल्स जो है आपको नजर आएंगी. इस वक्त अगर आप लोग स्क्रीन पे देखें तो नवाज शरीफ साहब आपको नजर आ रहे होंगे रोते हुए दुखी अंदाज में, और जिसमें हमारी यास्मीन आपा लीड कर रही थी NA 130 पर रात तक, मगर जैसे ही सुबह हुई तो एकदम से उनके रिजल्ट को चेंज कर दिया गया. स्लाइड नंबर 2 प्लीज. रेहाना आपा, दी ग्रेट, माशाल्लाह, our iron lady. We are proud of her, mashallah, mashallah. The way she contested the election, that was amazing. इनके मद्दे मुकाबले थे ख्वाजा आसिफ साहब, जिनको हमेशा से सिवाय क्रिटिसाइज करने के और कुछ नहीं आता या जुल्म करने के अलावा कुछ नहीं आता. रेहाना साहिबा रात तक वन कर रही थी माशाल्लाह. मुझे आई एम सॉरी आई कैन सी दिस स्लाइड प्रॉपर्ली. कैन आई हैव ये ओके. आप लोग ये देखिए कि जो रेहाना आपा की लीड थी वो जो है सुबह ख्वाजा आसिफ साहब को दे दी जाती है. तो ये इसे कहते हैं रिगिंग, और वो भी रात के अंधेरे में डाका डाला गया. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके जी, यहाँ पे हम आ जाते हैं हमारे NA 47 के कैंडिडेट यहाँ पे खड़े हैं, शुएब शाहीन साहब. इन पे तो डाके का कुछ ज्यादा ही जो है वो उन्होंने बड़ा जबरदस्त किस्म का डाका इनके हक पे मारा. और आप देखिए कि तारिक फजल चौधरी साहब, उन्होंने जितने वोट लिए हैं वो सब वो हैं कि जो शुएब शाहीन साहब के वोट थे, लेकिन सुबह उसको भी चेंज कर दिया गया. ये होती है रिगिंग. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके जी, अब आते हैं रावलपिंडी की तरफ. हमारे शेर ने, हमारे चीते ने यहाँ से NA 56 से इलेक्शन लड़ा, शहरियार रियाज साहब ने, जिन्होंने माशाल्लाह एक भरपूर किस्म की लीड ली. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हनीफ अब्बासी साहब के जो शुरू से चोरी में काफी माहिर हैं, तो उन्होंने ऐसा डाका डाला कि सुबह शहरियार भाई हार चुके थे 3 बजे के बाद. 3 बजे तक शहरियार भाई बिल्कुल जीत रहे थे, लेकिन उसके बाद हनीफ अब्बासी साहब जो है वो सबकत ले गए उनसे. थैंक यू शहरियार भाई. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. NA 236 कराची, आलमगीर खान वर्सेस हसन. आप इसमें देखिए कि किस तरह से, जैसे शामनाना आपा ने भी आपको बताया कि कराची पे जो है बहुत ज्यादा जुल्म किया गया है, कि हमने सारी सीट्स वहां से बंद की थी, लेकिन एक भी सीट हमारे हिस्से में नहीं दी गई. तो आलमगीर के साथ भी वही हुआ कि हसन साबर जो है वो जीत गए. और इसमें एक मजेदार चीज मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग स्लाइड की तरफ गौर से देखें तो आलमगीर खान के जो टोटल वोट्स थे उनके जो 0 थे
वो इन्होंने हसन साबिर साहब के पल्ले में डाल दिए और इस तरह से हसन साबिर जो है वो सुबह जीते। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। शेब भाई एक्सक्यूज मी, आई कैन सी द स्क्रीन, थैंक यू। ओके जी, मोहम्मद हारिस मेयो वर्सेस जावेद हनीफ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि रात तक हमारे पीटीआई के कैंडिडेट जीत रहे थे, लेकिन सुबह किसी और ने सबकत ले ली। नेक्स्ट, दी ग्रेट अयाज अमीर साहब। कौन नहीं जानता इनको कि इन्होंने कितना जबरदस्त इलेक्शन लड़ा है माशाल्लाह। बट अनफॉर्चुनेटली ताहिर इकबाल साहब, उनको रात को वो तमाम वोट्स दे दिए गए कि जो अयाज अमीर साहब ने हासिल किए थे। तो ये रिगिंग है। इन तमाम चीजों से सिर्फ आप ये अंदाजा लगाइए कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों को कॉर्नर करने के लिए, किस तरह इमरान खान के सिपाहियों को कॉर्नर करने के लिए उनके खिलाफ जो है वो महाजे जंग जो इन्होंने 1.5 साल से जो है बर्पा कर रखा था, उसको इस इलेक्शन में कि जिसका इमरान खान साहब को बहुत अरसे से इंतजार था, कैसे इन्होंने तबाह बर्बाद किया और किस तरह से इन्होंने खुलेआम धांधला किया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। NA 164 मलिक एजाज वर्सेस रियाज पीरजादा, जो कि रात तक 18,000 की लीड से जीत रहे थे, लेकिन सुबह होते ही उनकी लीड जो है वो दूसरे को दे दी गई। नेक्स्ट, NA 243 शुजात अली वर्सेस अब्दुल कादिर पटेल, जो कि रात तक 4,000 की लीड से जीत रहे थे, लेकिन सुबह उनकी लीड को चेंज कर दिया गया और वो हार गए। वैसे सब लोग नोट कीजिएगा, जो ऊपर इससे पहले आसिफ जरदारी साहब की एक शातिर किस्म की जो है स्माइल आपको नजर आ रही थी, तो उससे आपको अंदाजा होगा कि कराची को किस खूबसूरत अंदाज से जो है वो कराची को तबाह किया गया इन लोगों की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जी हमारे NA 11 सैयद फरीन वर्सेस अमीर मुकाम। अमीर मुकाम को तो आप सब लोग जानते ही हैं कि कितने ईमानदार हैं वो, ये तो आपको अंदाजा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जी PK 72 महमूद जान वर्सेस कामरान। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं कि पीपल्स पार्टी का कोई वोट है ही नहीं वहां पर, ठीक है, और वो देखिए कि वो उनको दे दिया गया माशाल्लाह। ये हमारे मुल्क का और हमारे इलेक्शन कमीशन और हमारे जो वहां पे ROs थे उनका कमाल है ये। ओके जी, फिर हमारे पास NA 40 के मलिक औरंगजेब खान, जो कि 38,000 से जीत रहे थे, उनको जो है वो तीसरी पोजीशन दी गई। जब धांधली हुई तो उसके बाद उनको तीसरी पोजीशन दी गई, जिसमें मौलाना को जितवा दिया गया, जिनके सिर्फ 18,000 वोट थे। नेक्स्ट ही आ जाते हैं हम, आप लोग ये पिक्टोरियल्स देख सकते हैं, ये वो एविडेंसेस हैं कि जो रात तक आपकी तमाम मीडिया स्क्रीन्स पर जो है शो हो रहे थे। आप लोग देखते जाइए प्लीज, इनको साथ साथ आप जो है नेक्स्ट उस पर जाते जाएं कि किस तरह से जो है धांधली की गई है। और यहाँ पे वो पूरा टोला बैठा हुआ आपको नजर आ रहा है कि जिसने इस मुल्क को इस टाइम इतना बड़ा नुकसान दिया है कि चाहे वो मुआशी हो, चाहे वो आपकी मॉरल वैल्यूज हो, हर चीज को तबाह बर्बाद करके इन्होंने रख दिया है। नेक्स्ट प्लीज। ये जो लिंक आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये आपके साथ हम शेयर भी करेंगे। काइंडली आप लोग जो जितने हमारे कंटेस्टेंट्स हैं, जितनों ने इलेक्शन जीता है और उन्हें हरा दिया गया, उन सब के फॉर्म 45 जो हैं वो इन लिंक्स में मौजूद हैं। आप लोग इन लिंक्स को ओपन करके आप बिल्कुल उनको जो है डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। ये लिंक हम आपको इसके बाद प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू गर्ल्स। अच्छा जी, अब हम चाहेंगे कि वीडियो नंबर 2, जिसमें आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जिस वक्त रिगिंग की गई, तो उसके बाद उन्होंने बहुत बड़े एहतजाज किए RO ऑफिस के सामने, इसके अलावा अपने विदिन द कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो हम चाहेंगे कि वो वीडियो आप जरूर देखिए ताकि आपको अंदाजा हो सके कि पब्लिक जो है वो अपना मैंडेट वापस क्यों लेना चाहती है और इस वक्त कितने इश्तिराल में है पब्लिक के हमें हमारा चोरी हुआ मैंडेट जो है वो वापस दिया जाए। प्लीज प्ले कीजिएगा वीडियो। थैंक यू।
Okay, so this is Rawalpindi, and ये 57 and 56 में ये protest किया था. कराची, जहां पर हमारे लोगों को शहीद किया गया, हमारे लोगों को गोलियां मारी गई. सवाल आई नो दैट कुछ के बाद है, मैं कोई बता रही हूँ डिफरेंट जगह. इसमें तकरीबन हमारी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो मौजूद हैं, जिनके प्रोटेस्ट हुए वो आप देख सकते हैं. ये बर्बरियत दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूं ही शोर नहीं डाल रही, बल्कि सच में उनके साथ बहुत बड़ी जो है वो हमला किया गया है. नाउ आई वुड रिक्वेस्ट सलमान अकरम राजा साहब प्लीज यहाँ से सलमान साहब माइक किधर है? सलमान भाई माइक किधर है? भाई साहब पहले कहते हेलो सलमान अकरम राजा साहब को रिक्वेस्ट करें कि इधर माइक पर आए, यहाँ पर बैठ कर स्पीच करें जो भी करनी है. कहा ना यार, आप बताएं उनको. सर कॉर्डलेस हैं आपके लिए, कॉर्डलेस हैं आपके लिए, इधर आ जाएं. मान ली भाई, मान ली, आपने मनवाई है. सिमाबिया एक और कॉर्डलेस दे दीजिए, एक और कॉर्डलेस दे दीजिए जी, इधर ही होगी. एक कॉर्डलेस और दे दीजिए, कॉर्डलेस पकड़िए को से हम अब कर दो. हाँ इधर 51 मरी. सर आ जाए, सर आ जाए. हो जाए, थोड़ा सा डिसिप्लिन, थोड़ा सा डिसिप्लिन. हेलो सर ये कॉर्डलेस जी बहुत शुक्रिया खातिनों हजरात आपकी यहाँ आमद का. यार बैठ जाए बाद में कल करूंगा मैं. बैठ जाए जी बहुत शुक्रिया. मैं गुफ्तगू उर्दू और अंग्रेजी दोनों में करूंगा क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल मीडिया के दोस्त भी मौजूद हैं. So I will speak in both Urdu and English. सर आ जाए. So that everybody present here सर कुर्सी है. आ जाए. can आप साथ follow what happened. आप डॉक्टर साहब किधर आ रहे हैं? डॉक्टर साहब The किधर है? first thing to remember while we look at the data, the evidence that we have, is that the rigging that happened with respect to this election primarily happened at the offices of the returning officers. Now that is a very serious thing. Normally one talks of rigging at polling stations, where the accusation is that the rival candidates carried out the rigging. But once the votes have all been brought to the office of the returning officer, who is a state official, and once the forms, the Form 45, that tabulates the result at every polling station has been brought to the office of the returning officer, खामोशी. one expects that the final aggregate based on the results from each of the polling stations would be done fairly by the returning officer. Unfortunately, sadly, tragically, what happened between the night of the 8th and the 9th of February and during the course of the morning of the 9th of February was a massive assault on democracy in Pakistan.
fictitious Forms 47 were created, which had nothing to do with the underlying vote that had been cast on the 8th of February. The underlying Forms 45 that were delivered at the offices of the returning officers were tampered with, were discarded, and completely fictitious results were created in at least 90 National Assembly constituencies. Now this raises a very serious and troubling question for democracy going forward. What is the point in holding an election if you're going to create a result out of thin air? Why should people come and vote at all on polling day if the result is going to have nothing to do with how they voted? So now what we are facing is a permanent question mark over democracy going forward. If the state officials responsible for safeguarding the election can be won over, can do what they did during the night of the 8th and the 9th and the morning of the 9th of February, then every election to be carried out in Pakistan, to be conducted in Pakistan, becomes a farce. That is why we are standing up and we are saying this farce must be reversed. If it is not, that will spell the death of democracy in Pakistan. This was not just an election fraud. This was a wholesale assault on democracy in Pakistan. And we know this followed months of suppression of the PTI workers, PTI leadership that were picked up in their thousands, leadership as well as the grassroots workers. Our symbol was taken away in the hope that we could not know who to vote for. This atmosphere of fear that pervaded the election campaign, every day our workers were picked up, our banners, posters, steamers were taken down by official vehicles, municipal corporation vehicles across the country. And anybody who invited us to a corner meeting had his home broken into during the dark of the night. So with this atmosphere, we went into the 8th of February, nevertheless determined to allow the people of Pakistan to speak. And the people of Pakistan roared on the 8th of February. They roared back against the oppression that had been unleashed on them. This was a historic vote. We need to congratulate the people of Pakistan. I went to polling stations in dark, dingy lanes, and I went to women's polling stations that day where illiterate women were standing, queuing in lines for hours, and they had actually painted our election symbols on their sleeves, on their hands. We all had different symbols. I had a badminton racket, people underneath me, somebody had an aeroplane, somebody had a paintbrush, and they knew who to vote for. These were illiterate women and men. They had taken our symbols to their hearts. We really thought that we would have a tough time getting people to vote for our diverse symbols. But the people assured us, they said, we know who you are. We know who you're standing for. We know what you're standing for. They cannot fool us by taking your symbol away. This was a magnificent effort by the people of Pakistan. However, what happened was equally disgusting. We have magnificence on one side and disgusting assault on the election on the other. So during the night, in my case for instance, in A128 Lahore, throughout the day the polling stations were swarming. It was a carnival atmosphere. And the Forms 45, as they started trickling into the RO's office, I was sitting there, I had gone there around 6:30 p.m. to be present. Every single polling station that had come in by 10 p.m., I had won. And the next morning when we got the Forms 45, I had a lead of 100,000 over the other candidate. 100,000. But at 10:30 p.m., I was ousted from the RO's office. There is a video that is when I could play that. So a contingent of policemen actually physically threw me and my wife, who was my election agent, out of the RO's office. My wife stood her ground, she sat on a chair, they physically lifted the chair and they threw us out. And thereafter they created the fake Form 47 that they announced at 1 p.m. the next day, the 9th of February. Which had nothing to do. Now what they did was, what's ridiculous, they could not really take away my vote, so they declared that I had polled 160,000 votes in Lahore in my constituency. This was a massive vote. This was a vote greater than any other in Lahore.
But then they showed my opponent, who had not actually gone beyond 60,000, as having polled 172,000 votes. This took the turnout for my constituency, NA 128, to 57%, whereas the turnout for every single provincial assembly seat underneath me, under NA 128, is 39 or 39.5%. So a jump of 19% between the National Assembly turnout and the Provincial Assembly turnout tells you everything. And I would urge the international media, the observers, to look for the turnout figures for the Provincial Assembly and for the National Assembly in the various constituencies where we say assault took place. And you will see this pattern repeated everywhere. This suggests that 110,000 voters entered polling booths and did not vote for the provincial candidate, but only voted for the national candidate and only the candidate opposing me. This is absolutely ridiculous. And this shows the clumsiness with which this assault was carried out. And we are taking all this to the courts, we have taken all this to the Election Commission, and we have our forms with us. Here I have the Form 45 that we filed in the Election Commission of Pakistan on the 12th of February. Now, nobody could have recreated these forms in 3 days. We filed every single form, we've done a detailed analysis, compared the results of the provincial assembly seats, and I urge all candidates to do that, do the hard work, and it is indisputable that there was an assault of the most drastic nature on the election process on the 8th and the 9th of February. Now with this, I want the international media, the international observers, to take our message to the world, to say that the people of Pakistan have been denied their voice yet again. And the consequence of this is most serious for the country. Kindly see, had we been allowed our fair number of seats, the PTI clearly would have emerged as the only federal party in Pakistan. We would have had at least 14 seats in Karachi. We would have had seats in Balochistan. We would have had seats everywhere. And we would therefore be the federal party that we actually are. But what they've done by the rigging that was carried out, they've turned every party into a small regional party. So what we have now is the People's Party as just a Sindh party. We have the PMLN, which got no more than 20 seats. With fake seats given to them, their figure has gone beyond 70. But it is clear that by fracturing the mandate of the PTI, we have done damage to the federal project in Pakistan. अब मैं उर्दू में थोड़ा सा कहूँगा, देखिए हर हल्के में आपने ये देखना है कि जो सूबाई असेंबली के वोट हैं उस हल्के में, उनमें और कौमी असेंबली के वोटों में फर्क कितना है। मेरे हल्के में NA 128 में 1,10,000 वोटों का फर्क है। ये वो वोट है जो मेरे मध्य मुकाबले को झूठ डाले गए, और ये चीज हर हल्के में हुई है। जब आप नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के वोटों को उसी हल्के में देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि उस दिन हुआ क्या। इससे ज्यादा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आप हमारे सारे फॉर्म 45 तो देख ही सकते हैं, ये ऑनलाइन मौजूद हैं। इन फॉर्मों को कोई शख्स 2 दिन में नहीं बना सकता था। हमने इलेक्शन कमीशन में ये फॉर्म फाइल कर दिए ताकि ये इल्जाम न लगे कि किसी ने बाद में बनाए हैं। लेकिन इन फॉर्मों से ज्यादा जो फर्क है प्रोविंशियल और नेशनल का, वो आपको सब कुछ बता देता है। हमारा पैगाम लेकर जाइए जमहूरियत की खातिर, पाकिस्तान की इस्तेहकाम की खातिर, और सारी दुनिया को बताइए कि जब तक पाकिस्तान में जमहूरियत को मौका नहीं मिलेगा, पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आएगा। थैंक यू सो मच सलमान भाई। नाउ नेक्स्ट यहाँ हम अपनी रिक्वेस्ट है बहन अलीमा आपा को खुशामदीद कहते हैं, और मैं कहता हूँ जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारी इस बहन के लिए, जिसने अपने भाई की मदद के लिए जंग लड़ी है, और मैं बहन को साथ पेश करता हूँ। Alima Appa, thank you so much, and Isma Appa, thank you so much for coming here and joining us. We are grateful, और हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इमरान खान साहब जो है वो हमारे दरमियान होंगे, और इंशाअल्लाह एक बार फिर कहेंगे इमरान खान कदम बढ़ाओ, इमरान खान कदम बढ़ाओ, इमरान खान कदम बढ़ाओ। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी अयाज अमीर साहब से। मैं गुजारिश है काइंडली, इंतहाई शोर सुनाई दे रहा है,
प्लीज मेंटेन साइलेंस ताकि हम एक दूसरे को सुन सकें। कोई दोस्त जो हाथ से बोलेगा जिससे बोल रहे हैं काइंडली खामोश हो जाए, जरा स्पीकर्स को आप सुने। और ये मैं डाइस पे गुजारिश कर रहा हूँ, यहाँ से नेक्स्ट स्पीकर कॉल होगा, जलसे की शक्ल न दें, इसको प्रेजेंटेशन तक महदूद रखें। जो दोस्त बोलेगा उसे बाहर निकाल देंगे। ये बहुत बड़ा इवेंट है, इंटरनेशनल मीडिया तक जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अयाज अमीर साहब से कि प्लीज आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मुतालिक आप प्लीज आगाह कीजिए इंटरनेशनल मीडिया को भी और नेशनल मीडिया को भी। थैंक यू सर। एंड प्लीज ये तमाम लोग जो राइट साइड में काइंडली थोड़ा पीछे हो जाइए, प्लीज काइंडली थोड़ा पीछे हो जाइए, मीडिया डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पे। प्लीज, दिस इज फॉर योर ऑन गुड, काइंडली थोड़ा सा पीछे हो जाइए। थैंक यू जी। अयाज साहब प्लीज। Now, what were the mechanics of bringing in my Chakwal constituency, NA 58. NA 58 is to the south of Islamabad. The one thing done early in the evening was RO के दफ्तर को सील कर दिया गया. The RO's office is in the district complex. It was sealed by police and by क्या कहूँ, निगरानों के निगरान वो मौजूद थे और उन्होंने वो सारा बंद कर दिया. I had gone to the RO's office at 6 o'clock. They kept cajoling me, persuading me to leave, and I was kicked out at around 7:30, 8 o'clock, which means that the RO and other people were there and they could do what they wanted. Many thought, none of my election agents, no one else. I have all the form, the original Form 45. मेरे हल्के में 456 polling stations. The forms 45 of all these polling stations are present here. I got 1,55,000 votes. The Muslim League candidate also got a large number of votes. According to Forms 45, his vote tally was 1,29,000, which is a fairly decent number. But in the declared results, the winner was given 1,15,000 votes. मतलब है उसके actual vote जो थे उससे कम उसको दिया. People's Party was given 74,000 votes out of nowhere. Their actual vote count, the PPP candidates' vote count was 11,000-12,000. The Labbaik got 25,000 votes and he was gifted with an additional 25,000 votes, which means 45,000 votes. Now what happened was, and I'll be very brief, I won't take much of your time. When the announcements were stopped on television, as I told you, the compound, the district compound had been sealed off. The presiding officers of the constituency were standing in the courtyard. And they kept standing in the cold until morning. उनसे रिजल्ट लिया ही नहीं गया. उनके हाथों में रिजल्ट्स थे, उनके पास बैग्स थे. किसी ने इतना तकल्लुफ नहीं किया कि बैग्स लेने, उनसे रिजल्ट्स ले लें. And at 6 o'clock in the morning, while the presiding officers were standing outside in the cold with the results in their hands, the result was declared. I mean, can there be a bigger farce than this? I'll just conclude with this. Thank you. एक रिक्वेस्ट है तमाम स्पीकर से. इस प्रेजेंटेशन का बुनियादी मकसद ये है, we want to bring before the international media the candidates who are the victims of this fraud. So kindly make your speeches precise.
be it succinct so that they have some time. We have around 200 candidates who have got affected. Each of them will have at least 1 minute. So make it a precise statement. Thank you. Thank you, Abdul Bhai. Thank you so much, Ayaz and we wish you all the best. Okay जी, अब हम दरखास्त करेंगे अपनी आयरन लेडी रेहाना डार साहिबा से कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड नो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कोई नारेबाजी नहीं होगी और अभी कोई खामोशी से हमारी माँ को सुनेंगे। ये हमारी कौम की माँ है, ये हमारी मादरे मिल्लत की जगह है और खामोशी से सब लोग सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरा सियासत में कोई तल्लुक नहीं था। मैं एक घरेलू खातून थी, एक माँ थी, घर की चार दीवारी की इज्जत थी। मेरे घर को ख्वाजा आसफ ने डीपीओ इकबाल हसन से मिलकर जो जुल्म कराए वो माँ बयान करी। इसने मेरे घर को तोड़ दिया, मुझे बालों से घसीटा गया, मेरी चादर उतारी गई, मेरे पांव पर शीशे मारे और मैं क्या क्या जुल्म बताऊं। इस हसन इकबाल ने ख्वाजा आसफ से मिलकर जो मुझ पर जुल्म कराए, मैं अकेली माँ घर पर रहती, ना जाने मेरे लगते जिगर कहाँ है और कहाँ है। मैं कुरान मजीद से जुड़ी हुई औरत थी, दीन से 40 साल का मेरा रास्ता था, मैं दर्श देती थी, मैं इस जुल्म के खिलाफ डटी। खौफ के पुत मैंने तोड़ दिए और ला इलाहा का सहारा लेकर एक अकेली माँ अपने बच्चों के बगैर बाहर निकली और लाखों गैरतमंद सियालकोट के नौजवान बहादुर बेटे, बहादुर बेटियां, बहादुर माँ और भाइयों ने मेरा साथ दिया। देखते देखते कतरे कतरे से शहर सियालकोट का जो वोट था इमरान खान का था, दरिया बन गया और माँ के साथ खड़े हो गए। वोट मेरा नहीं, इमरान खान का था। शहर सियालकोट के लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। शहर सियालकोट इमरान खान का है, मेरा तो दीन का रास्ता था। मैं जुल्म के खिलाफ डट गई। मैंने कहा कि जुल्म नहीं होना चाहिए, इलेक्शन लड़े, बाहर लड़े, दरवाजे तोड़कर माँ की तौहीन न की जाए। वही उनकी थे जिन्होंने मेरे चादर पर और मेरे गिरेबान पर हाथ डाला। वही महाफिज थे हमारे जिन्होंने मेरे से तशद्दुद किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के पाँव में जन्नत रखी, माँ को अवली दर्जा दिया। मैं पूछती हूँ कि जब मेरा सियासत से तल्लुक नहीं था तो मेरे पर जुल्म क्यों? मैं इसके खिलाफ डट गई और इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की मदद हुई। और बाकी इलेक्शन का मैं बता नहीं सकती, आप टीवी चैनल वालों से पूछो। जिन लोगों ने मेरे सर्वे किया वो मेरे पास आते थे ख्वाजा आसफ के सर्वे के बाद, वो कहते थे माँ आप 90% आप जीत रही हैं। ये माँ जी के सारे फॉर्म 45 350 ये माँ जी के 350 ये रेहाना डार साहबा के जो 50,000 से ऊपर लीड से जीती है हमारी माँ जी के, वो फॉर्म 45 है। चैलेंज करते हैं ख्वाजा आसफ को इधर आ जाए इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और फॉर्म 45 दिखा दे आके। मैं जीत रही थी तो मुझे मुबारकबाद के कार्ड आ रही थी बाहर से भी, सियालकोट से भी। मुझे पता चला कि जो 6 हल्के बाकी हैं उन पर मेरे प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को उठा लिया गया है, तशद्दुद करके बाहर निकाल दिया गया और बस से उठा कर ले गए। मैं उसी वक्त चंद सारे लोगों को साथ लेकर आरओ के दफ्तर, साथ मेरा बेटा भी था, औरतें भी थी साथ, आगे 30-25 पुलिस वाले खड़े, दीवार बन के खड़े थे, बड़ा तशद्दुद किया हम पर। और देखो ये मेरा अंगूठा, रोड के बाजू को ऐसे मुझे धक्का दिया, मैं सर अंदर गिरा। मैं पूछती थी कि क्या मेरा रायपुर में जिले का इलेक्शन लड़ रही हूँ, मुझे इजाजत है मैं अंदर जाऊँ।
मगर उस वक्त ख्वाजा असद साहब ने वो अहसन इकबाल डीपीओ और आर इकबाल मिलकर बड़ी रकम लेकर मेरे रिजल्ट को तब्दील कर दी थी। मैंने सुबह तमाम मीडिया सियासतों को बुलाया और अपने 345 असर रख के ऊपर मैंने वही किताब सिरातल मुस्तकीम जो हमारे नबी पर उतारी गई थी ऊपर रखकर मैंने हाथ रखकर कहा कि ये मेरे रीजनल 45 फॉर्म है। मैं उस किताब की कसम रख के कहती हूँ कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों पर उतारी थी। अब आपको यकीन हो जाना चाहिए कि ख्वाजा सभी लाए अपने 45 फॉर्म। और दूसरे मेरे बच्चों पर जो झूठे इल्जाम लगाए गए, एक से निकालते हैं तो दूसरा इल्जाम लगा देते हैं। खुदाया ऐसे जुल्म ना करो। अगर माँ की दुआ सुनी जाती है तो माँ की बद्दुआ को भी अल्लाह रद्द नहीं करता। आसमान पर चमकती बिजलियां कड़कड़ाती आवाज से माँ की बद्दुआ से किसी के घर पर भी गिर जाए तो गिराने वाला खुदा माँ नहीं, गिराने वाला खुदा होगा माँ की बद्दुआ से। इतना जुल्म ना करो। हर माँ के साथ जुल्म ना करो, हर बेटी के साथ जुल्म ना करो। इलेक्शन पहले भी हुआ करते थे। मैंने अपनी जिंदगी में इलेक्शन भी देखे, वोट भी दिया। इस तरह का तशद्दुद और इस तरह का इलेक्शन मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। असल आरो इकबाल और जो इकबाल है उसने मेरे पे जमीन डाली थी। असल इकबाल आरो ने भी और उसका नाम क्या है असल इकबाल डीपीओ ने जमीन डाली 10 मरले। मैं इन पर मुकदमा करूंगी, ये अदालत में आएंगे और मुझे बताएंगे। मैं आला अदलिया का शुक्र अदा करती हूँ। मेरी आला अदलिया ने माँ को इंसाफ दिया। मेरी आला अदलिया काबिल फख्र है मेरे लिए। और सुन लो इलेक्शन कमीशन साहब, जब नशीन को आपने दस्ता में नशीन इफ्तिखार को इंसाफ दिया था, वो दस्ता की बेटी थी। और मैं शहर सियालकोट की माँ जिसने कुरान पर हाथ रखकर फैसला दिया है कि ये मेरे 45 फॉर्म असली है। आप नबी की उम्मत है, माँ की आपसे अपील है, आप मेरे उस कुरान को मद्देनजर रखकर उसी तरह फैसला मुझे दें जैसे आपने इफ्तिखार नशीन को दिया था। आज माँ देखेगी कि मेरे साथ क्या इंसाफ हो। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप चाहें तो मैं दोबारा इलेक्शन के लिए भी तैयार हूँ। तो आप मुझे इजाजत दें तो मैं इलेक्शन लड़ूँ। ये जलसा नहीं है। मेहरबानी करें, तमाम स्पीकर से रिक्वेस्ट है कि सिर्फ अपने सामने फ्रॉड का जिक्र करें। बाकी खान का पीटीआई का जो बयानिया है वो ऑलरेडी। दूसरी बात ये है कि स्टेज से वो अगर आप उतर जाए जो इफेक्टेड एमएनएज और एमपीएस नहीं है, मेरी इस्तदा है कि सिर्फ मुतासिरा एमएनएज और एमपीएस फ्रंट पेज जो साहिबान जिन्होंने अपना आज़ार राय कर दिया है उनसे इल्तिमास है कि सीट वेकेट कर दें ताकि नए मुकर्ररीन हज़रात वहाँ पे तशरीफ रखें और अपना बयान जो है वो आप सबके सामने पेश करें। इस्तदा है एक दफा फिर कि ये यहाँ पे तकरीर न करें, सिर्फ अपने साथ हुई फ्रॉड का जिक्र करें, फॉर्म 45 रखें, डिफरेंस बताएं कितने मार्जिन से जेली तौर पे आपको अरवाया गया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से, अभी हम काइंडली जो बात कर चुके हैं अगर वो सीट रोटेट कर ले तो हमारे नेक्स्ट जो कैंडिडेट्स हैं जो अपनी बात करना चाहते हैं वो ताकि मीडिया से बात कर सके। और प्लीज बात को शॉर्ट रखिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा चांस अपने लोगों को दे सकें। थैंक यू। अब हम जी, अब हम Now I would like to request Forum Chair Zaman और रविस्तान साहब from कराची कि वो अपनी बात करें प्लीज, लेकिन सिर्फ 2 मिनट इस्लामाबाद का हम कर रहे हैं, इसके बाद सबको चांस देंगे। अभी चांस देंगे सबको मिल रहा है। फोरम शेर जमान और रविस्तान मैं आज से कुछ दिन पहले भी एक बात कह रहा था और आज मैं वापस गुजारिश करूंगा
کہ یہاں پہ ہمارے جتنے بھی جرنلسٹ بیٹھے ہیں باہر سے ہوں یا پاکستان سے ہوں، میں آپ سب سے گلہ کروں گا. وہ میرا گلہ یہ ہے کہ جو کچھ کراچی کے اندر ہوا، جو ظلم کراچی کے اندر ہوا، جو ڈے لائٹ رابری کراچی کی ہوئی، اس کو تو مجھے ایسا فیل ہوا کہ جیسے کوئی بھول ہی گیا کہ پاکستان کے اندر ایک شہر کراچی بھی ہے. جس طریقے سے MQM کو شہر کراچی کے اندر یہ تحفے کی شکل میں سیٹیں بانٹی گئیں، میں آپ سے لفظ استعمال کروں گا، بانٹی گئیں، اس کے اوپر مجھے ایسا فیل ہوا کہ جیسے کوئی آواز اٹھائی نہیں گئی. کیونکہ آپ یہ یاد رکھیں کہ تحریک انصاف نے جب 2018 میں بھی اپنی حکومت بنائی تھی تو اس کے اندر سب سے بڑا رول جو پلے کیا تھا وہ شہر کراچی نے کیا تھا. اور ہم نے یہ دیکھا کہ جب 2024 میں الیکشن ہوئے تو جتنا ووٹ تحریک انصاف کو شہر کراچی میں اس دفعہ ملا وہ شاید 2018 میں بھی نہیں ملا ہوگا. جو فارم 45 ہمارے پاس موجود ہیں، ان فارم 45 میں ہم نے یہ دیکھا کہ اندازاً 12.5 لاکھ سے لے کے 13 لاکھ ووٹ جو ہیں وہ کراچی کی عوام نے تحریک انصاف کو دیے. میں زیادہ ٹائم ضائع نہیں کروں گا، میں آپ کو خالی 3 ایگزامپل دوں گا. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ فارم 45 کے حساب سے پاکستان تحریک انصاف کراچی کے اندر جو ہے وہ اپنی 19 سیٹیں جیتی ہیں. 19 سیٹیں، 19 نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہم نے کراچی میں سے جیتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک حیران کن بات یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صوبے سندھ کے اندر جو ہے وہ ریزلٹ کراچی کے اناؤنس ہو ہی نہیں رہے. اور مراد علی شاہ کا ریزلٹ اناؤنس ہو رہا ہے، سعید غنی کا ریزلٹ اناؤنس ہو رہا ہے، ناصر شاہ کا ریزلٹ اناؤنس ہو رہا ہے. لیکن مجال ہے کہ کراچی کی بات ہو جائے. حیدرآباد کے اندر ہم نے اتنی بڑی لیڈ لی ہے کہ کوئی حساب نہیں. 6 پروونشل اسمبلی کی سیٹس ہیں اور 2 نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں. وہاں پہ وہ ساری سیٹیں کھا کر حیدرآباد کی ایک سیٹ دے دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ بدنام زمانہ جو سیاسی جماعت MQM جو ذمہ دار تباہی کی پاکستان کی معیشت کی پچھلے 30 سال تک، اس سیاسی جماعت کو واپس نافذ کر دیا گیا کراچی کے اوپر. ان کو جا کے سیٹیں تحفے میں دے دی گئی ہیں کہ لو مزے کرو. ان کو 2.25 لاکھ ووٹ بھی نہیں ملا ہے جو ریزلٹ ہمارے پاس فارم 45 کے اندر یہاں پہ موجود ہے. جماعت اسلامی کراچی کے اندر ہمارے بعد نمبر 2 پہ آئی ہے، وہ کہیں پر بھی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی 3رے نمبر پہ تھی، TLP 4تھے نمبر پہ، اور MQM جس کو بانٹا گیا ہے سیٹیں وہ 5ویں نمبر پہ تھی، 5ویں نمبر پہ. یہ ہم فارم 45 کے اندر اس کو ثابت کریں گے. سو میں آپ کو خالی 3 ایگزامپل دوں گا اور اس کے بعد میں ختم کروں گا کہ NA 236 میں ہمارے کینڈیڈیٹ نے 1,03,640 ووٹ لیے اور اس کو کتنے ووٹ دے دیے؟ اس کو 1300 ووٹ دے کے فارغ کر دیا. 1300. NA 241 جہاں سے میں الیکشن لڑ رہا تھا، جی آئی نو جی. سو NA 241 جہاں سے میں الیکشن لڑ رہا تھا 78,000 ووٹس میں نے سیکیور کیے. 78,000. میرا ریزلٹ کیونکہ RO نہیں اناؤنس کر رہا تھا، بہت امپورٹنٹ بات ہے. میرا RO جو تھا اس نے ریزلٹ تبدیل کرنے سے انکار کر دیا. آدھی رات کو اس کو ہٹا دیا، آدھی رات کو تبدیل کر کے کسی خاتون کو بلایا، اسے ڈرایا دھمکایا اور ریزلٹ چینج کر دیا. تو یہ حال ہے کراچی شہر کی. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز ہائی لائٹ کراچی کو پلیز ہائی لائٹ کریں. تھینک یو ویری مچ. ٹائم کسی بھی اسپیکر کو نہیں کیا جائے گا. ہمارے پاس ٹائم کم ہے، انٹرنیشنل میڈیا ہے، ان کا ٹائم بڑا قیمتی ہے. یہاں پہ اسپیچز نہ کریں، پریسائزلی بتائیں فارم 45 پہ آپ کے کتنے ووٹ ہیں، 47 میں آپ کو کتنے ووٹ ہیں. پنجاب کے لوگ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سب سے پہلے تو میں ہماری انٹرنیشنل میڈیا کا اور لوکل میڈیا کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. دیکھیں، سندھ سے، کراچی سے ہم نے پروونشل اسمبلی کی 34 سیٹیں جیتی ہیں، لیکن MQM اور پیپلز پارٹی نے پنجاب سے سارے اسپیکر آپ بلوا رہے ہیں. سنیے میری بات کو سنیے، ہم بلوا رہے ہیں. اور دیکھیے صرف سندھ سے ایک آدمی کو بلوایا ہے. آپ بلواؤ میرا ڈاکٹر آپ کو نام دیں، آپ کو نام دوں. میرے 4,167 ووٹ تھے، پیپلز پارٹی کے 3,278 ووٹ تھے. ان کے فارم 47 میں 7,000 ووٹ کر دیے اور میرے 2,164 کر دیے. یہ آروپ اور ان کے ساتھ جو مافیا تھا انہوں نے یہ ظلم، یہ جبر پورے سندھ میں پروونشل اور نیشنل اسمبلی
के साथ की है। तो आप मीडिया के तवज्जुह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी इन बातों को आप हाईलाइट करें ताकि पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम ने जिन लोगों को मुंतखब किया है वही असेंबली में आए। ये चोर, ये डाकू जिन्होंने 70 साल से इस मुल्क का खून चूसा है, इनको आगे ना आने दे। शुक्रिया। तमाम स्पीकर अपना तारुफ कराएं। ये अरबिस्तान से हमारे साबिक एमपी भी हैं और अभी प्रोविंशियल असेंबली में आप सैफुर्रहमान साहब बात करेंगे। नेशनल असेंबली की हमारी उम्मीदवार है कराची 4 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैफुर्रहमान और मैं कराची NA 235 से इलेक्शन लड़ा हूँ। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कुरान की कसम खाता हूँ कि ये 45 मेरे हल्के NA 235 में टोटल 96 पोलिंग स्टेशन है और मैं अपने खाता हूँ कि ये 95 पोलिंग स्टेशनों का नतीजा है और मेरे मध्य मुकाबिल MQM के जो कैंडिडेट है मैं आज भी उसको चैलेंज करता हूँ कि उसके घर के 3 अफराद जिन पे मैं हाथ रखूं ये कुरान उठा ले कि उसके पास जो रिजल्ट मौजूद है वो हक और सच पर मबनी है, तो मैं अपनी हार भी तस्लीम कर लूंगा। मैंने अभी बैरिस्टर नसीम साहब को अदालत में कहा कि बैरिस्टर साहब आप कुरान उठा सकते हैं, आप कुरान उठा ले, मैं आपकी ये जीत तस्लीम कर लूंगा और आपके साथ ये जो दूसरे शख्स मौजूद है। तो वो मुस्कुराने लगा। मैंने कहा मैं ये कुरान उठाने को तैयार हूं कि आपके पास मौजूद ये जो फॉर्म 45 अभी दिखाया नहीं है आपने, जिसे आप मैनेज कर रहे हैं, ये झूठ पर और ढकोसले पर मबनी है और ये 45 फॉर्म वो 45 फॉर्म है जो रियासत के इदारे इलेक्शन कमीशन के मुतय्यन प्रिजाइडिंग अफसरान की तरफ से हमको दिए गए और हम पर ये इल्जाम लगाया जाता था आज से पहले तरीके के वर्करों पर, कैंडिडेट पर कि ये अपना 45 फॉर्म हासिल नहीं करते। मेरे हल्के में 2 नौजवानों को गोलियां मारी गई, मेरे हल्के में जगहों पे दंगे फसाद हुए, उसके बावजूद तरीके इंसाफ के वर्कर ने फॉर्म 45 हासिल किया और कराची NA 235 के बुजुर्ग बूढ़े नौजवान इतनी बड़ी तादाद में निकले कि उसे मैनेज करना नारों की बस की बात थी और ना किसी उस्ताद की जो उस्ताद मैनेज कर रहे हैं उसको। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं शौकत महमूद साहब मेरा अच्छा बसमानी मैं अपना हल्का बोल देता हूँ। मेरे साथ ये ले उसके बाद शौकत बसरा साहब के बाद सकी साहब, उसके बाद समीउल्लाह चौधरी साहब। चलें शुरू करें सर, शुरू करें और फिर हमारे सांबा से श्वेत शाहीन साहब में रिप्रेजेंट करेंगे। चलें शुरू करें सर, शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं NA 49 अटक 1 और बेटी ईमान सीम NA 50 अटक 2, हम दोनों कैंडिडेट थे PTI के इमरान खान साहब के। हम हल्के में नहीं गए। मेरे आरओ को 2 दिन पहले इन्होंने चेंज किया और एक SC सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जो करप्ट था उसको ब्लैकमेल कर वहां लगाया गया। कोई बात नहीं, हम हल्के में नहीं गए। हमारे लोगों को उठाया गया, उनको कहा गया कि इसको वोट दो। और भाई वो तुम्हारी कंपेन कर रहे हो, तुम बंदों को उठाते हो और कहते हो इसको वोट दो। वो जब वापस जाते हैं तो 100 बंदा को मुबारक देने आ जाता है। कंपेन तो तुम मेरा कर रहे हो। मेरी बारी है, अपने साथ वीडियो चलानी है। जगह पे भूले हुए हो। इसके बाद मेरी बारी है, आपने वीडियो चलानी है। आपको अपने हल्का मैंने टोटल वोट जो पोल हुई है वो उसमें से 1,45,119 वोट मैंने लिया और शेख आफ्ताब अहमद PMLN बेटे इसके बाद मेरी बारी है, वीडियो चलानी है, वीडियो चलानी है। और मैं 65,503 वोट से जीता हूँ। मेरे पास ये पूरा फॉर्म 45 पड़े हुए हैं। इसी तरह ईमान का है, वो जीती है अल्हम्दुलिल्लाह। 3 कैंडिडेट थे, ईमान का है, हाफिज साद रिजवी साहब और मलक सोहेल जो कि नून लीग का था। मलक सोहेल तीसरे नंबर पे था। ये हाफिज रिजवी साहब ने
اس بات کو تسلیم کیا کہ وہ تیسرے نمبر پہ تھا اور ایمان حافظ صاحب سے بھی 22,417 ووٹ زیادہ لے کر نمبر 1 پہ تھی اور راتوں رات انہوں نے سارے چینج کیے. کوئی بات نہیں, انشاءاللہ ہم کھڑے اور اللہ کے فضل و کرم سے کھڑے رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شوکت بسرا. باقی ہے ہمارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سکرینیں خالی کریں گی تینوں, یہ سکرینوں پہ آگے سے بندے ہٹیں تینوں. یہ اسمبلی کے پیچھے وہ جو رائٹ سائڈ پہ سکرین ہے اس کو خالی کریں. آپ لوگ بھائی آپ لوگ خالی کریں سکرین. یہ تینوں اسمبلیز خالی کریں وہاں سے. آپ لوگ نیچے اتریں بھائی, سب لوگ نیچے اتریں نیچے سارے. ادھر والی بھی خالی کریں, لیفٹ سائڈ کی بھی. وہ رائٹ سائڈ پہ بندے کھڑے ان کو بھی اٹھائیں. سب لوگ ہٹیں وہاں سے, ہٹیں وہاں سے سارے. شاباش جلدی ہٹیں. بسم اللہ نظر آ رہی بسم اللہ خالی کریں سکرین. بسم اللہ. مہربانی کریں سکرین خالی کریں بھائی. ہٹے آپ لوگ. ہلو نیچے اترو, نیچے اترو سکرین سے. بسم اللہ. سکرین سے نیچے اتریں. ہیلو 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 ہیلو. ختم ہو گیا. ہیلو یار مائک نہیں چل رہا بھائی. ہیلو میں اسٹیج پہ چلا جاتا ہوں. چلے آپ کو آواز آ رہی ہے. ہیلو نہیں آپ ایسے آپ کو میرا تو پتا ہے نا 104 ووٹوں کا ڈفرنس. ایک گزارش سن لیں, مہربانی کر لیں. یہ یہاں پہ بہت سارے ورکرز اندر آئے ہوئے ہیں. مہربانی کریں یہ آپ کی وجہ سے آپس بھی بنا ہے, شور بھی ہو رہا ہے. ابھی اگر کوئی شور کرے گا تو ہم اس کو زبردستی نکال دیں گے. آپ خاموش ہو جائیں. یہ مہربانی کریے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شوکت محمود بسرا, کینڈی 163 جنوبی پنجاب, بہاول نگر 4. میں کل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ فاروق صاحب کی کورٹ میں پیش ہوا تھا اور صحابی بھائی ہوا ہے. میں نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کورٹ کے سامنے کہا تھا. اگر جھوٹ بولوں اور میں کوئی بات چھپاؤں تو اللہ کا مجھ پر کہہ نہ دو. اللہ کی مجھے نبی شفاعت حاصل نہ ہو آخرت میں. اور جو اداروں میں لوگ بیٹھے ہیں اگر ہمیں انصاف نہیں دیں گے تو ان کو بھی نبی کی شفاعت حاصل نہ ہو. گزارش یہ ہے, میرا حرکت کہتے تھے خان صاحب کا ووٹ صرف جی ٹی روڈ پہ ہے شہر میں. آپ کو پتا ہے کہ میرے سپریم کورٹ سے تعلق بحال ہوئے, 8 دن میرے پاس تھے. واللہ باخدا مجھے کیمپین نہیں کرنے دی گئی. لیکن لوگوں نے کہا شوکت بسرا ووٹ امانت ہے قیدی نمبر 804 کی, تم نہ تھک جانا. 60% ووٹ لوگوں نے ووٹ ڈالا. سنیں شوکت, یہاں یہ انٹرسٹنگ حلقہ ہے. میں انٹرنیشنل میڈیا کو اور میڈیا کو کہوں گا کہ اس کو ایز اے سیمپل لے لیں. 3 کینڈیڈیٹس تھے. شوکت بسرا اللہ تعالیٰ کے کرم فضل کے بعد میں خان صاحب کا ممنون ہوں. خان صاحب کا ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے ٹکٹ دیا. شوکت بسرا پی ٹی آئی کی طرف سے, مسلم لیگ نون کی طرف سے نور الحسن تنویر اور مسلم لیگ ضیاء آمر ڈکٹیٹر ضیاء الحق کا بیٹا اعجاز الحق مسلم لیگ ضیاء کی طرف سے تھا. آپ کو صرف ووٹ بتا دیتا ہوں. شوکت بسرا 96,710 اور میرے پاس ایک فارم 45 اور دکھایا ہے. اور یہ ویڈیو دیکھ لیں, میرے حلقے کی ویڈیوز ہیں. 48 گھنٹے ہمارے لوگ وہاں پہ رہے. ڈی پی او بہاول نظر آیا, اس نے وہاں سے زبردستی ریٹرننگ افسر غور سے دیکھ لیں, میں کوئی ویڈیو میڈیا میں دکھاؤں گا. 48 گھنٹے 10,000 بندہ باہر بیٹھا رہا. انہوں نے ڈی پی او بہاول نگر نے علیگ پولیس کے ساتھ, رینجرز کے ساتھ وہاں سے تمام ریکارڈ غائب کیا. اور میں نے جو چیز تھی ادھر میں دوسرے میں جان دوں گا, ویڈیو ضرور دیکھیے گا. یہاں پر میں نے وہ ویڈیو بھی موجود ہے جہاں پر 40 فارم 45 تیار ہو رہے ہیں. میں چیلنج کے ساتھ بات کرتا ہوں, اور سے ذرا ویڈیو دیکھ لیں. شوکت بسرا 96,710. دوسرے نمبر پہ یہ کیوں کہہ رہا ہوں, نون لیگ کا نور الحسن تنویر, اس نے لیے 72,784. تیسرے نمبر پہ اعجاز الحق جس کے ووٹ ہیں 58,822. اب انٹرسٹنگ کام دیکھیں, اس
मोहब्बत साहब भी मौजूद है। कल उन्होंने उसकी मौजूदगी में इजाजत राब्ता नोटिस दे दिया में इलेक्शन कमीशन ने। मैं खुद वहां पे गया हूँ, खुद आपको किया वहां पे नोटिफिकेशन कर दिया इजाजत राब्ता इसके लिए भी टाइम मुकर्रर करें। उसके बाद कल मैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट गया हूँ। है ना दादा, इसके लिए भी टाइम है। इन्होंने कोई अनोखा इलेक्शन नहीं लड़ा। मैं खुद वकील हूँ, मैंने खुद अपना इलेक्शन लड़ा है। मैंने टाइम इनके लिए भी रखे। मैंने वहां पर पुराने पाप पे हाथ रखकर बात की है। मैं कहा जैसा आपके दादा से मेरे साहब चलने आखिरी बात कह के दुनिया वालों, लेकिन इनको हम ये नहीं छीनने देंगे मैंडेट इमरान खान का, ये समझ लें। और साउथ पंजाब का ये हल्का जहां इमरान खान का सिपाही गुजरा है, मैं हल्के वालों को भी पार्टी वालों को भी दिलाता हूँ, ये वोट इमरान खान की अमानत है, ये मेरे हल्के वालों की अमानत है। आखिरी सांस तक भाई प्लीज मेहरबानी करें, सबको टाइम दे। क्या सिस्टम कर रहा है ये वही फिर से सिस्टम शुरू हो गया। क्या बात है, मुझे बुलाए और इजाजत आपको बुलाए। अगर इजाजत आप फॉर्म 45 दिखा दे, सबको 2-2 मिनट का टाइम दे। सब मुसीबत के मारे आए हुए हैं, सबको टाइम दो प्लीज, 2-2 मिनट सबको टाइम चाहिए। प्लीज देखो का ख्याल रखें। यार आपका हम थोड़ा सा किसी के स्पीकर को नहीं बुलाए, सैयद फरीद को इनवाइट करते हैं। वी आर इनवाइटिंग सैयद फरीद एंड फॉर द अटेंशन ऑफ द इंटरनेशनल मीडिया, सैयद फरीद इज अ पर्सन whose 3 relatives were gunned down on the day the polls were held. He is beginning in the शबाज शरीफ के मुकाबले who was formerly invited डिस्कस करना चाहिए। He maneuvered women and he will explain how his mandate was stolen. लोकल ही रहेंगे, गोरे चले गए भाई, वो इस माहौल में वो नहीं बैठ सकते। में आजम था उसको हराया मैंने, मुझे नजदीक कर दिया। शॉर्ट सी बात करें, मुख्तसर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, हमें इधर मौका दिया। तो सबसे बात ये है कि हमारा इन्हें ज़्यादा शहला उम्मीदवार हूँ और मैंने पाकिस्तान के तक 12,600 जगह जीता है। उसके बाद ये हुआ कि हमारा आज वापस भेज दिया अगर ये समझे कि ये आप उसको जितवाया। लोगों ने जब इख्तियार किया उसके बाद हमारे पास आप रिजर्व है मतलब पता करता हूँ इस्लाम से बयान हमारे पास मौजूद है। हमारा दो आदमी शहीद हुए और 18 हमारा जख्मी है और उसमें 1200 किसी के पैसे में कोई फायदा हमारा जो है ना वो उसने 55 बंदे गिरफ्तार किया। माइक किधर है? अली माइक किधर है? Said Farid messages that 2 of his relatives were gunned down when he protested. A team of the PTI workers received bullet injuries. The curfew has been claimed in district Shangla. All this was done to make Amir Makam win, who got defeated by a margin of 12,066 votes. Thank you so much, Said Farid Saab. आप आ जाए। आप जाए बस जो कुछ स्पीच करते हैं। अच्छा, this is a copy of the FIR and these are squad 45 declaring unequivocal winner of this constituency. Kindly सब जो 1 मिनट की बात करेंगे, इससे ज्यादा नहीं प्लीज, हमारे बहुत ज्यादा है प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हैदराबाद से आया हूँ और मेरा नाम डॉक्टर मुस्तनसिर बिल्ला है। 219 से मैं कैंडिडेट हूँ
صرف میں تمہارا تھوڑا سا وقت دوں گا. تمام لوگ یہ بتا چکے ہیں کہ 45 فارم سب کے پاس تھے. ہمارے پاس بھی 45 نمبر کے فارم تھے. 2.5 لاکھ ووٹ ہم نے حیدرآباد سے لیا. حیدرآباد پہلا شہر ہے جہاں پر 4 آدمیوں کو زخمی ایم نے کیا, 1 آدمی کو شہید کیا, مگر ہماری کسی بھی اخباری نمائندے نے اس بات کو ہائی لائٹ نہیں کیا. ہم الیکشن جیتے ہوئے, میں 60,000 ووٹ سے جیتا ہوا ہوں. ایم 220 سے فیصل مغل صاحب وہ بھی 35,000 ووٹ سے جیتے ہوئے. اسی طرح صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی جیتے ہوئے. اصل میں مجھے جو بات بتانی ہے وہ یہ بتانی ہے کہ عمران خان کے ساتھ میں 29 سال سے ہوں. عمران خان نے جب اسمبلی کے اندر کہا کہ الیکٹرانک مشین آنی چاہیے جس کا رزلٹ صرف 5 منٹ میں آتا, مگر کسی ادارے نے ان چور و ڈاکوؤں نے اس کا ساتھ نہیں دیا. وہ چیختا رہا کہ مشین لائی جائے, اور ان اداروں کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے ہمیں الیکشن ہرایا اب وہ کیسے چاہیں گے کہ ہمیں الیکشن جتوا دیں. اور انہوں نے مشینیں اسی لیے نہیں منگوائی کہ عمران خان کو تاریخ کا سبق بنانا چاہتے تھے. اگر پاکستان کے لوگوں نے ریفرینڈم دے دیا کہ پاکستان کا واحد لیڈر عمران خان ہے, صرف عمران خان. شکریہ. Excuse me, Maltar Mustafa, educator, candidate, he will speak. میں اپنی محترم کنٹری پریس اور انٹرنیشنل پریس کے سامنے ایک بہت بڑا گریونس رکھنے آیا ہوں. میں حلقہ 171 رحیار خان 3 سے اللہ کے فضل و کرم سے اور خان کے ووٹ کی بنا پر 60,000 سے زیادہ ووٹوں سے جیت کر آیا ہوں. پرسوں سے مجھے ISI یہ دباؤ دے رہی ہے کہ میں خان صاحب کو چھوڑ کر I must join Noon League or IPP. Otherwise, my name will not be notified by the Election Commission. میں اس لیے آیا ہوں کہ یہ بتاؤں کہ یہاں ایجنسیز کیا رہی ہیں. یہ ان کو جتوانا چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے ووٹ کے وقت ہمارا ووٹ لسٹ میں نہ ہو. تو آپ حضرات اس کا نوٹس لیں, ایجنسیز اس میں پوری طرح کیا کر رہے ہیں یار, یہ کس لیے لگوایا ہوا ہے؟ تھینک یو سو مچ جی. اب ہم بلوچستان, کیونکہ بلوچستان ہمارا میس ہو رہا ہے, ہم انوائٹ کریں گے سالار کو. اگر سالار کاکڑ یہاں موجود ہے یا غفار کاکڑ, دونوں میں سے جو بھی موجود ہے پلیز یہاں پر آئیں اور بلوچستان کو ریپرزینٹ کریں. کوئی نہیں ہونی سالار کاکڑ یا غفار, پٹن مائک کھولنا پڑے گا یار. پلیز آپ اپنی سیٹ پہ تشریف رکھیں. ہماری تو سارا دن چلتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں غفار خان کاکڑ ٹی وی 41 پٹن سٹی سے فارم 45 کے تحت جس میں 110 پولنگ اسٹیشن ہے, سارے 110 پولنگ کے میرے پاس کمپلیٹ ریزلٹ ہے. اس میں تقریباً 1800 لیڈ سے جیت چکا ہوں. لیکن فارم 47 جو جاری کیا گیا اس میں ہمیں اندر آفس کے اندر چھوڑا بھی نہیں گیا. اس میں مجھے 2000 لیڈ سے آیا ہے. بلوچستان میں ایک چیز میں بتاتا چلوں, بنیر سے ڈاکٹر رضوان وہ آیا ایک ریسٹ ہاؤس میں, اس نے 10 دن اسٹے کیا. اس میں تقریباً 20 ارب روپے یوز ہوئے, جن کے اسمگلرس کو لایا گیا, کنٹریکٹرس کو لایا گیا. میں سمجھتا ہوں اس طرح ہمارے قومی سیٹ پہ سالار خان کاکڑ ابھی تک اس کا فارم 49 جاری نہیں کیا جا رہا ہے. جو کینڈیڈیٹ محمود خان اچھتا ہے کہ آپ میں مسلم لیگ نون کا بیٹا 3000 ووٹ کو 27,000 کیے گئے, یہ داندلی ہے. ہمارے پاس کمپلیٹ ریزلٹ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم عمران خان کے سپاہی ہیں, ہم کبھی نہیں. سردار بابر صاحب بھی آ چکے ہیں ہمارے, انہیں یہ بھی بتائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ بلوچستان سے خصوصاً ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے اور تمام ان بیوپاریوں کو ہم ایکسپوز کریں گے. افضال پہاڑ مجھے ٹائم دے, یہی کا ٹائم دے. علی این 123 شباز شریف کے مقابلے میں میرا رزلٹ ہے.
ये इन्होंने पता नहीं किसको दे रखे टाइम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं मेजर लतासम सत्ती NA 51 मरी, कोटली, कोहटा और कलर सईदा से उम्मीदवार हूँ। मेरे भाइयों और दोस्तों, फॉर्म 45 जसरा साहब ने मेरे फॉर्म 45 जरा सामने कर दीजिएगा। ओरिजिनल फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद है और इस कैलकुलेशन के मुताबिक मैं आज भी जो 20,000 जीत रहा हूँ उसमें मेरे वोट 1,33,000 और मेरे अपोनेंट PMLN वालों के वोट जो है वो 1,09,000 हैं। मेरे भाइयों, इसमें जो रिगिंग की गई उसमें जाली वोट डालेंगे, जाली वोटों के अलावा वोट इन पेपर इंक्रीज किए गए, कोई सबूत नहीं है उसका। मेरे जहां ज्यादा वोट थे वो उसके खाते में डाल दिए गए और इस तरीके से 30,000 वोट उनको ज्यादा डालने की कोशिश की जा रही है और जो डिक्रीज मेरे किए गए वो 10,000 हैं और इस तरीके से मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वहां पर एक आरो है ओवैस तारण, ही इज द वन जो ये सारी कार्रवाई कर रहा है और हमें उस आपस तक अप्रोच करने की इजाजत तक नहीं दी जा रही। कंसोलिडेशन में हमें नहीं, बगैर कंसोलिडेशन के उसने उनका रिजल्ट जो है वो अनाउंस किया जो सरासर कानून के खिलाफ है। इसमें जो टाइप ऑफ रिगिंग इन्होंने की उसमें बैलेट पेपर फेक डाले जिनके हमारे पास सबूत और वीडियो मौजूद है। स्वैप ओवर किए, मेरे वोट जहां ज्यादा थे वो उस कैंडिडेट के सामने रखे और उसके मेरे सामने रख दिए। इसी तरीके से बाल जगहों पर उन्होंने इतनी बड़ी फिगर इंक्रीज किए कि जो पोलिंग का रेशो है 90% तक चला गया, जो कि किसी भी सूरत में बिलीवेबल नहीं है। आरोप आपस में है वो फेक काम कर रहा है, आरोप की खिलाफवर्जी कर रहा है। इंशाअल्लाह ताला हम इसको छोड़ेंगे नहीं। मैं एक आप सब लोग मुझे गुजारिश करूंगा, अली भाई, पाकिस्तान का पंजाब का एजुकेशन डिपार्टमेंट हमेशा बहुत बड़ा किरदार अदा करता रहा है और उसके लोगों को बुला के उनसे वीडियो मैसेज भेजो लगा सर मैं तो मैं जुर्मे सुनने उनके साथ भी खड़े होंगे इंशाअल्लाह। मैं समीउल्लाह चौधरी हूँ और मैं मरवत नहीं मेरी बस होने वाली ये है कि मेरा ये बस रिजल्ट कर दिया मरवत ने 12 बजे पाकिस्तान टेलीविजन पर, जियो पर, ARY पर, CNN पर मुझे कामयाब कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, करेंगे इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर, उनके डेस्क पर 3 दिन तक मुझे कामयाब कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया। उसके बाद 4 तारीख को फॉर्म 47 पर मुझे हरा दिया गया। मेरे पास तमाम सबूत मौजूद है। फॉर्म 45 मेरे पास मुकम्मल मेरे हल्के के 292 पोलिंग स्टेशन है, जिनके 292 मेरे पास फॉर्म 45 भी मौजूद है। माइक नहीं दे दिया आगे ना, आप माइक पकड़ लो, मैं कहता हूँ इस तरह नहीं होने देंगे। कमीशन से ये गुजारिश करता हूँ कि मैंने पिटीशन फाइल कर दी है, मुझे जस्टिस चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर उस उम्मीदवार को जस्टिस चाहिए जिसके साथ जुर्म हुआ है, जिसके वोटों पे डकैती हुई है। इमरान खान को जस्टिस चाहिए। इमरान खान के नाम पे देने वालों को इन्होंने उनके साथ डकैती की है, इमरान खान के वोटों में डकैती की है। आप हमारे दस्तो बाजू बने, हमारी आवाज बने और इमरान खान को जस्टिस दिलवाए। शुक्रिया। यहाँ पर खबर थी जिनके साथ बहुत बड़ा धंधा किया गया है। रिक्वेस्ट करती कि बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ वुमेन विंग कमल शासक जो है वो अपने हल्के की भी बात करेंगे और बाकी खबर थी। थैंक यू। बैठे चलेगी 166
یہ ادھر جا کے بات کر رہی ہیں. آپ یہاں کر رہا ہوں میں ادھر ہی کر رہا ہوں. ہم جیت چکے ہوئے تھے. 78 صاحب آئے تھے. اس کے بعد پورا کیا کیا جا رہا ہے یار؟ روک کے صبح 11 بجے تک پریزائڈنگ آفیسرز کو آر او کے آفس کے باہر بٹھا مائک دے دے راشد, ہمیں مائک دے دو. راشد نے پوری سہولت کاری کی کیونکہ مائک لے آؤ اسے. تحصیل ہے ساؤتھ پنجاب کی, وہاں پہ کوئی میڈیا نہیں تھا, اس لیے کھل کے دھاندلی کی گئی. پولنگ ایجنٹس کو مارا پیٹا گیا, خواتین پولنگ ایجنٹس پہ تشدد کیا گیا, اور جس شخص کو جتایا گیا ہے وہ لوٹا ہے سمی گیلانی. پورے احمد پور شرکیہ سے جب وہ گزرتا ہے تو لوگ اس کو لوٹا لوٹا کہتے ہیں. وہ اپنے گھر کے 4 پولنگ اسٹیشن پوچھ کے میرے سے تیسرے نمبر پہ جا کے ہارا. احمد پور شرکیہ کے وہ سارے پولنگ اسٹیشن ہار چکا ہوا تھا رات 11:30 بجے تک, اور صبح کو اس کو وہاں پہ وننگ کینڈیڈیٹ بنا دیا گیا. پورے کا پورا رزلٹ جو ہے وہ صبح 11:30 بجے تک چینج کیا گیا. اس کھلی نا انصافی پہ اور الیکشن کمیشن کی طرف سے اپوائنٹ کیے ہوئے آر اوز کی سہولت کاری پہ ہم پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں اور تمام لیگل فورمز کے اوپر بھی جا رہے ہیں. یہ تماشا تمام خواتین کے ساتھ کیا گیا, چاہے ہماری یاسمین راشد صاحبہ ہو, عالیہ حمزہ صاحبہ ہو, مہر بانو قریشی صاحبہ ہو, ایمان طاہر صاحبہ ہو. جتنی خواتین جیت رہی تھی ایک اسٹیٹس فریم آف مائنڈ ہے. تمام خواتین کو بڑی وکٹری کے بعد ہرانے کی جو سازش کی ہے اس کے خلاف پہلے ہم یہ تو ہمارے جو این اے بیٹھے ہوئے ادھر قسم کا مائنڈ سیٹ ہے کہ خواتین کے ساتھ یہ ظلم زیادتی کی گئی ہے کہ وہ الیکشن ڈائریکٹ لڑی تھی اور ان کو ہروایا گیا. تو ہمارے پاس پورے ثبوت موجود ہیں, ویڈیوز موجود ہیں, اور آر او کی سہولت کاری یہاں تک ہے کہ جس حلقے جس پولنگ اسٹیشن سے 2 بجے کے قریب ہم نے آپ کو بتایا, ایون پریزائڈنگ آفیسر کا بیان موجود ہے, انہوں نے اس پریزائڈنگ آفیسر کی ڈیوٹی وہاں سے بدل دی. اتنی کھلی دھاندلی میں ہم پروٹیسٹ بھی کریں گے اور انشاءاللہ ہر وہ فورم ایگزاسٹ کریں گے جہاں پہ ہمیں آواز اٹھانی ہے. تھینک یو. راشد یہ مائک ادھر دے دو یار. این اے 148 ادھر این اے 148 ملتان, این اے 48 اسلام آباد علی بخاری صاحب. میرے حلقے میں 345 یہ کن کا بخاری صاحب کا تمام رزلٹ میں آپ موجود ہیں, اور ان رزلٹ کی روشنی میں میں 36,260 جلسہ ہے. جیت چکا ہوں. میں آج جیسے یہاں پہ میں قرآن کے اوپر اگر میرا مخالف چاہتا ہے کہ قرآن کا فیصلہ کر لیتے ہیں, اگر میں قرآن اٹھاتا ہوں کہ میرے رزلٹ ٹھیک ہے, اگر وہ اٹھاتا ہے تو میں اپنی اپیل واپس لیتا ہوں. اور دوسری چیز میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جس طرح آر او نے رات کسی کو بھی نہیں بیٹھنے دیا, ہمیں بھی نہیں بیٹھنے دیا. سیکورٹی فورسز نے الیکشن آفس کو گھیرے میں لیا ہوا تھا, ہمیں اندر جانے نہیں دیا. اور صبح جو رزلٹ اناؤنس کیا وہ سارے 145 کو خراب کر کے اناؤنس کیا گیا, اور اس میں انہوں نے اتنے بڑے بلنڈرز کیے, جس میں سب سے بڑا بلنڈر یہ ہے جب کوئی ووٹر اپنا علی تیرا این اے 117 ہے نا, قومی صفائی اور سارے این اے علی حسن بڑا لکھا ہے, بڑا لکھا ہے. 45 پولنگ اسٹیشن آج ایم این اے جہاں پہ آ جاؤ. ہاں 100% میرے خلاف ووٹ پڑا, نیشنل اسمبلی میں 100% پہ پہنچ گئے, جبکہ صوبے میں وہ نہیں اسی پولیس اسٹیشن میں 45-50 یہ 45 پولیس اسٹیشن یہ ویسے بھی سارے وکیل ہیں. اچھا اب اس کو ہم نے نا بڑا اچھے طرح آرٹیکولیٹ طریقے سے ہم نے پریزنٹیشن دینی. میں نے اس لیے سب کے این ایس کے لکھ لیا, نام لکھ لیا ہے تاکہ تیمور ملک پھر اسی طرح ایک پولیس اسٹیشن یہ آر او نے رزلٹ جو بنایا اس پہ ٹوٹل ووٹ تھے 1674 جو پول ہوئے جو کروایا انہوں نے وہ 1816. یہاں پہ بھی 142 ووٹ ایکسٹرا بنا دیے گئے, اور 70 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جن کے اوپر یہ دھاندلی علی عباس ہے. سید محمد علی. مجھے پتا ہے, آپ مجھے نہیں جانتے, مجھے آپ کا پتا ہے. میں ظہیر عباس کھوکھر ہوں, این اے 127 نہیں, میں علی بھائی کی بات کر. باقی تو علی بھی جانتا ہے, باہر صاحب بھی ہیں, آپ کو میں جانتا ہوں. آپ کے سامنے کیس ہے, میرا خیال ہے اس کو جو ہے نا تینوں چاروں اچھی پریزنٹیشن دے کے 2 منٹ تک کو بولنے دیں, وہاں سے وہ فورم ادھر لے لیں. میں تو ادھر کھو کے لے آئے یار, مائک پھاڑ لیا آپ کو. میں جا رہا ہوں. نہیں 2 منٹ نہیں اور پی پی پوجا اور پی پی پوجا بھی کر رہا ہوں. ہم تینوں
माइक पकड़ लो बस। कोई एक सेना मंत्री आ रहे, इन लोगों ने इतनी बात ध्यान दी और बदमाशी की है, और उसके बावजूद हमें अंदर तक घुसने नहीं दिया, और हमें आरोप के साथ किसी अंदर नहीं जाने दिया। कितनी बड़ी धांधली थी, ये धांधला हुआ। आप सब लोग निकलो ईमान के साथ, यकीन के साथ। ये पूरे मेरे साथ नहीं हुआ, ये पूरे दुनिया में ऐसे हुआ है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वो इंतजार इसके लिए, ये वोट हमारा नहीं है, ये वोट इमरान खान की इमानत है। मगर हमने उसको देना है। बंद करूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। NA 123 अफजाल अजीम पहाड़, मैंने शबाज शरीफ को वहां से हराया और उस हल्के को जिसको वो ये समझता था कि उनकी जागीर है, वहां से हराया। और आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि कायद जो मुर्शिद है उन्होंने मुझे टिकट क्यों दिया, एक वर्कर को दिया, साबित कर दिया है लीडर ने नहीं हराया, उन चोरे आजमों को अफजाल अजीम पार्ट ने हराया क्योंकि मुर्शिद का वर्कर है। मेरा रिजल्ट ये है, सबसे पहले रात को मेरा रिजल्ट आना शुरू हुआ जब मैं जीत रहा था, जिन पोलिंग से जीत रहा था, इन्होंने उन पोलिंगों पे फौज भेजी, रेंजर्स भेजी, पुलिस की भारी नफरी भेजी और मेरे रिजल्ट को वहां से रोककर इन्होंने अपना रिजल्ट शुरू कर दिया। मैं वो शख्स हूं जिसने जब नवाज शरीफ पाकिस्तान आया उसने जलसा रखा, अगले रोज मैंने अपने हल्के में कन्वेंशन रखा था काने में, जो इन्होंने नहीं होने दिया और मुझे मेरे बेटे और भाई को गिरफ्तार किया, दहशतगर्दी के पर्चे हुए। खान साहब ने जो मुझे टिकट दिया था, मैंने खान साहब की लाज रख दी, मैं खान साहब के साथ था, हूं और रहूंगा, और हम इंशाअल्लाह ताला जीते हैं। और ये सीट जिस पर वो वजीर आजम बनने जा रहा है, आपको बता दूं कि ये वो सीट है जो उसकी नहीं है। जिस वक्त भी चाहेंगे ये ओपन होगा, ये फारग हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ मलिक यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ जीता हूँ 6000 वोट से ज्यादा। तो एक और साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ मेरे हल्के में तो धांधली भी ठीक तरह नहीं कर सके। जो पहला फॉर्म 47 आया उसके मुताबिक गिलानी साहब की 293 वोटों की लीड थी। जो दूसरा एक और फॉर्म 47 जारी कर दिया गया जिसके मुताबिक उनकी लीड मेरे पे सिर्फ 104 की रह गई। तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि गिलानी साहब आपके साथ हाथ हो गया है, अपनी सेनेट की सीट ना छोड़िएगा, सेनेट पे रहें, नेशनल असेंबली का रुख ना करें। तो जो मेरा सिर्फ घर का हल्का है, पोलिंग स्टेशन है, वहाँ मेरे 767 वोट थे, 13 रिजेक्टेड थे। इन्होंने इतनी बेहुदा धांधली की है कि मेरे वोट 67 कर दिए और 713 रिजेक्ट कर दिए। और अल्लाह की किस्मत ऐसी है मेरी कि मेहरबानी अल्लाह की कि मैं वो रात को ही इलेक्शन रिजल्ट मेरी फॉर्म जो है वो ट्वीट कर चुका था। तो एक भी फॉर्म चेक हो जाएगा कि मामला खत्म हो जाएगा। मैं PP 95 चिन्योट शौकत अली फहीम एडवोकेट की तरफ से हमारे हल्के में ये फॉर्म 45 है कि हमारी लीड 3125 की बनती है, जबकि फॉर्म 47 थे हमें हरा दिया गया और हमें आर ऑफिस से निकाल दिया गया। ये हमारे साथ बहुत जुल्म है। और हमारे NA के उम्मीदवार मार खालिद साहब जो कि NA 94 से 10,000 की लीड से जीते हैं, उनको भी कैसे नंबर 6 के मुकाबले में रात की तारीख में हरा दिया। इमरान खान साहब, तुम इस जुल्म के खिलाफ हम आपके साथ खड़े हैं और अब ये पाकिस्तान की आवाम आपके साथ अली साहब को अली बुखारी जितने कैंडिडेट बराबर का इससे प्लीज आप लोग जो हमारे बाकी सूबे हैं हमें एक्सपोर्टर से अभी जो है उन्हें रिप्रेजेंट करना है काइंडली यार हम क्या लेने हैं? पूरा लाहौर में बैठा हो, पूरा लाहौर में जा रहा हूँ, उसके बाद आप लोग कर लेते यार, सारे लाहौर में लोग इधर बैठे हुए हैं। इसी के मुताबिक मैं अपने हल्का से 38,000 वोट से जीत चुका हूँ और जो कैंडिडेट जिसको फॉर्म 45 से 47 से उन्होंने जितवाया है उसके वोट सिर्फ 18,000 वोट थे।
रहे हैं। मैं हर बार कहता हूँ कि ये उन्होंने जो इलेक्शन प्रोसेस किया है उन्होंने सारा झूठ, फ्रॉड और शुक्रिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं सैयद मोहम्मद अली बुखारी इस्लामाबाद NA48 से जी, इमरान खान साहब का कैंडिडेट जी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो पहला शख्स हूँ जिसका सबसे पहले फॉर्म 45 टेबल पे रख के अपनी वीडियो वायरल की थी। आई एम द फर्स्ट वन। और आज भी मेरे पास एक कंपाइल्ड रिजल्ट मौजूद है सारे का सारा, और बिकॉज एक्नॉलेज बाय दी लॉयर्स, क्योंकि 204 से ज्यादा वकील मेरे साथ थे मेरे हल्के में, 261 पोलिंग स्टेशन थे। ये सब उसका कंपाइल्ड रिजल्ट है जो इंटरनेशनल मीडिया पे जा चुके हैं, जिसके तहत मैं 45,000 वोट से जीता अपने मुखालत से। और ये इस्लामाबाद की जो सीट है NA48 ये पाकिस्तान की वाइड सीट है जिसमें जो मुस्तफा नवाज खोकर आ रहे हैं उन्होंने भी पिटीशन की कि अली बुखारी जीत गया। तरीके लबैक आ रही तो चौथे नंबर पर उन्होंने भी पिटीशन की कि अली बुखारी जीत गया। और हम सब का जो 45 का वो आपस में मैच करते हैं। इसके साथ मेरे दोनों भाई दोस्त जो इस्लामाबाद से वो जीते थे चले गए क्योंकि हमने पिटीशन करनी है, वो दोनों भी जीत गए। 46 और 47 ये इस्लामाबाद का खान साहब का गढ़ है, ये उनकी सीट है, ये उनकी इमानत है। और मैं पहला शख्स हूँ जिसने इसके ऑर्डर लिया, ये मैं पहला शख्स हूँ जिसने हाई कोर्ट में इसलिए। और आगे भी आज उस पिटीशन जाएगी सीट पे, वो इंशाल्लाह मैं करूँगा। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं मलक ज़हीर अब्बास खोखर NA127 से इमरान खान का सिपाही आपसे मुखातिब हूँ। यहाँ पर हमारे साथ लाहौर के तमाम वो NAs के उम्मीदवार बैठे हुए हैं। मेरे दाएं जानब अली एजाज भुटर NA117 से, जिन्होंने अलीम खान को शिकस्त दी भरपूर तरीके से और उनको धांधली से हराया गया। उसके बाद मलक तौकीर अब्बास खोखर, ये जो व्हील चेयर पे है NA126 से, इन्होंने लाहौर के नून लीग के फ्राडिये सैफर ग्रुप खोखर को 40,000 की लीड से हराया है। जनाब मलक नदीम अब्बास बारा साहब, जिन्होंने जो नून लीग के जो शरारती और शैतान लोग हैं उनको 10,000 की लीड से हराया है, 13,000 की लीड से। अफजाल अजीम पहाड़ साहब ने अपना केस आपके सामने रखा। मेरे पीछे यासिर गिलानी साहब बैठे हैं जो कि इमरान खान के सिपाही हैं। इन्होंने 6,000 की लीड से नून लीग के मोहम्मद मदनी साहब, जिन्होंने 5,000 की लीड से नून लीग के हमदा शहबाज को हराया है। और मैंने नून लीग का जो शैतान है अताउल्लाह तारड़, जिसको मैंने 36,000 की लीड से हराया है। और ये इसलिए जिन्होंने ज्यादती की है कि हम सब आरओ के सामने बैठे हुए थे, रिजल्ट कलेक्ट कर रहे थे। वहां पर पुलिस ने रेड किए, हमें जदोखौफ किया। और फजर के वक्त जब अल्लाह ताला की मखलूकात इबादत पर मसरूफ होती हैं, ये शैतानी लोगों ने, जिनके साथ इंतजामिया के लोग शामिल थे, वहां पर इन्होंने ऑपरेशन किए। हमारे आरओ के दफातर पर आरओ साथ शामिल थे, इंतजामिया साथ शामिल थी, और तमाम लोगों ने, तमाम हमारे जो उम्मीदवार थे, इनको जदोखौफ किया और आरओ के दफातर से बाहर निकाला। उसके बाद इन्होंने ये रिजल्ट तैयार किया और फैब्रिकेटेड रिजल्ट है, ये धांधली शुदा रिजल्ट है। हम इसको नाकबूल करते हैं और हम ये कहते हैं कि हम अपने अपने हलकों में MNAs और MPs हैं और लाहौर इमरान खान का है। लाहौर में ये साबित किया है कि लाहौर इमरान खान का है। लाहौर में शहबाज शरीफ आ रहा है, लाहौर में नवाज शरीफ आ रहा है, लाहौर में मरियम आ रही है, लाहौर में हमदा शरीफ आ रहा है। ये तमाम सीटें जो हैं लाहौर की हमने जीती हैं। पूरे पाकिस्तान में हमने 2/3 मेजोरिटी से ये जीता है और ये सरासर दरियाती है। यहाँ पर मीडिया के लोग मौजूद हैं, इंटरनेशनल मीडिया के लोग मशहूर हैं। हम मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, लेकिन हमारे साथ इंतजामिया और पुलिस मिलकर ज़दोख़ौफ़ कर रही है, टॉर्चर कर रही है। अभी तक हम अपने अपने घरों में, अपने अपने इलाकों में महफूज नहीं है और हमारे रिजल्ट छीने गए हैं, हमारे डाका हुआ है पाकिस्तान में इधर। और हम चाहते हैं कि इस पर तमाम जो मीडिया के लोग हैं वो इसको उठाएं। ये हक और सच की लड़ाई है और इस पर इंशाअल्लाह ताला हम जो है चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमें वहाँ से मुझे खान साहब के नाम पर 53,000 वोट मिला, मगर बदबख्ती से ये कहना पड़ रहा है कि 53,000 वोट को जो है उन्होंने रिजेक्ट किया और जो चौथे नंबर पर मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट थे
ड्रेस चेंज करके आगे लाया गया। तो हमारे हल्के के आवाम की यही जो है आवाज है, यही उम्मीद है कि हमें यहाँ जो हमारे लीगल प्लेटफॉर्म है वहाँ से इंसाफ मिलेगा और पाकिस्तान को से जो 5 साल को वोट दिया यही है कि इंशाल्लाह इसके लिए हम आवाज उठाएंगे और थोड़ा सा प्लीज और आगामी बार जो वो जीता है चेयरमैन तरीके से वोट डालेंगे 31,000 से कम करके 11,000 का और जो वोट थे 6,010 वोट जिसको 20,000 शो किया और मुझे खैरात में सीट दे रहे हैं आप इस पूरे निजाम के ऊपर कोई फर्क देता हूँ मंत्री को और पूरे पाकिस्तान के लिए मिसालें के बाद अभी लोग सामने आ जाए के लोगों से कहता हूँ अगर अल्लाह ताला ने उनको हिदायत की और उनके अंदर कोई जमीन चाहता है आज इधर ही आओ इधर 50,000 के लिए मेरा है ना माँ बाप को बताया मेरा बेटा इलेक्शन लड़ना था लेकिन जो ज्यादतियां हुई हैं उनके रस्ते बच्चों के लिए बंद कर दिए गए थे। फिर एक माँ मैदान में आई, हमने अपना मैदान खाली नहीं छोड़ा और मैंने उस पर इलेक्शन लड़ा। मेरे मध्य मुकाबल बड़े बड़े सियासतदान थे, चौधरी निसार अली खान, गुलाम सरवर खान और एक और आजाद उम्मीदवार थे। मेरा 1,03,000 और कुछ वोट था और जो मेरे जिसको जितवाया गया है उसके 46,000 वोट थे। 1:30 बजे नताज आना बंद हो गए। मैं आरोग्य ऑफिस गई, उन्होंने मुझे अंदर नहीं सुबह 5 बजे नहीं जाने दिया। दिन के 1:30 बजे अनाउंस हो गया जी रिजल्ट के उसके 88 है। इस तरह और जो कुछ हुआ वो आरोग्य ऑफिस में हुआ और उन्होंने इस तरह धांधली की और एक माँ और एक इतना बड़ा जो मैंडेट लेकर आई थी उसको हरा दिया गया। जैसे ये चोर हैं वैसे ही इनके कैंडिडेट भी चोर हैं जो चोरी के वोटों पर बैठ जाते हैं। पाकिस्तान मैं पाकिस्तान से 5190 से तारीख मैं का कैंडिडेट था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 55,000 से प्लस वोट लिए। मेरे अगेंस्ट मनसब डोकर नून लीग का था, उसका 42,000 था। मेरे इसी तरह मेरे MNA उमर हाशिम खान वो 39,000 की लीड से जीते। मेरे पास ये फॉर्म 45 सारे टोटल मुकम्मल है और एक दिन पहले भी उस दिन जिस दिन रिजल्ट अनाउंस हो रहे थे आरों ने कहा हमारा इतना बहुत बड़ा पाकिस्तान सारा इमरान खान के सिपाही सारे निकल आए, एहतजाज हुआ। अंदर खलाई मखलूक और TCO साहिबा और DPO तीनों हमारे पास आए। एक ही बात पे रट थी कि आप अपने एप्लीकेशन चेंज करके रिकॉर्डेड करवा लें तो हम आपको नोटिफिकेशन कर देते हैं। लेकिन हमने एक ही कहा कि हमारा जीना मरना खान के साथ है, हम PTA के साथ और रहेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है मीडिया से ये सारे 45 मेरे पास है और मेरे अगेंस्ट जो जीता है वो 2 दफा MNA रहा है। इखलाकी तौर पर उनको गैरत करनी चाहिए, शर्म करनी चाहिए और वो एक PTA के अंदर से स्पाइस से हारे हैं और फिर उसके बावजूद सच्चाई से अपनी कामयाबी का वो कर रहे हैं। मेरी मीडिया से कोई अदालतें नहीं सुनी, मेरी अपील हुई है, कोई अदालतें नहीं सुन रही। खुदारा हमारी चीफ जस्टिस थैंक यू सो मच, थैंक यू। और काइंडली आप लोग जितने भी कैंडिडेट से जो बात करना चाहते हैं वो नीचे मीडिया में
उस पर चले जाएं, वहाँ सीट्स जो है वो वेकेंट है, वहाँ बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ से आपकी ऑडियो जो है वो मीडिया तक नहीं जा रही, अभी मीडिया ने बताया है। इससे प्लीज जितने भी कैंडिडेट्स हैं आप प्लीज नीचे चले जाएं और वहाँ पर बैठ जाइए। थैंक यू। माइक दे ले इधर। और मैं उनके बिहाफ में उनका केस प्रेजेंट करने आई हूँ। अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45 जो कि हमारे पास सारे मौजूद हैं, राजा राशिद साहब ने 51,000 प्लस वोट लिए हैं और जो उनके सेकंड जिनको जिता दिया गया है राजा हमीद साहब को, उनके वोट खाली 28,000 है। हमारी टोटल लीड 22,000 वोटों की है और इसके बावजूद आपके साथ मिलकर हमारी सीट हरा दी गई है और यही इस प्लेटफॉर्म में मैं हाईलाइट करने आई हूँ। थैंक यू। ओ यार माइक इधर दे दो यार, अच्छा इधर लो यार माइक दो, पहले इधर माइक दे दो यार। जितने लोगों ने बात करनी है चाहिए नीचे चले जाए। इधर ही बैठ जाए, ऐसे करके थोड़ी सी जगह ले लो ना, आज बैठा लो, एडजस्ट कर लो जी। तमाम कैंडिडेट्स प्लीज जो बात करना चाह रहे स्टेज से नीचे जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सरदार मुदा खान शाहवानी, हल्का पीबी 43 कोयटा बलूचिस्तान से। कोयटा पीबी 43 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला इस हल्के से बलोच कौम परस्त और पश्तून कौम परस्तों के साथ था। अल्हम्दुलिल्लाह खान की नजरिया और मोहब वतन बलूचिस्तानियों ने खान के नजरिए के साथ देखकर यहाँ से हमें भारी अक्सरियत से कामयाब की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस हल्के से दूसरे नंबर में तीसरे नंबर वाले एक कैंडिडेट को वो पैसे के जोर पर दूसरे को किरास करके हमें किरास करके उसको फर्स्ट पे लेके आ गए। हम ये तमाम 45 फॉर्म और हमारे साथ मौजूद है 45 फॉर्म, तो आप सब साथियों से गुजारिश है कि आप इसको हाईलाइट करें, हम खान के मैंडेट को वापस लें। बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद कलोर चौथी से मैंने 1,13,000 वोट दिया है। मेरे मध्य का था 64,000 से 64,000। मैंने 50,000 की लीड से उनको हराया है, लेकिन उन्होंने औरों ने मिलकर मुझे 1203 वोट से हराया है। वो नूर वाला था, अब्दुल कादिर को मैं चैलेंज करता हूँ, आप आए हमारे साथ बैठे, ये 45 फॉर्म है हमें, हमारे पास तो सबके सब है। अगर आपको कोई है तो आप मेहरबानी ये सीट छोड़ दें। अवाम तुम्हें जाना है, आपने अवाम की अदालत में आपने जाना है, आप छोड़ दें सीट। मैं हर उठा के कहता हूँ कि मैं 49-50,000 की लीड से जीत गया हूँ, आप छोड़ दें। NA-94 से हमारे मध्य मुकाबिल नूर लीग के अपोनेंट जो कैंडिडेट थे कैप्टन शेख साहब, वो पूरी तरह शिकस्त से पाश हो रही थी। रात 1-2 बजे के बाद जो हमारे मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन हैं PB 96 में, उनको मैनेज करके और आरोपी बदयासी के साथ इस इलेक्शन को गांधी सजा किया गया है। हमारी NA-94 पर वादिया बदली है, हमारे पास हमारे फॉर्म 45 सारे मौजूद हैं और इस फॉर्म 45 की बुनियाद पर हम चैलेंज करते हैं, हम अदालत में भी गए हैं, इंशाअल्लाह हमें साफ मांगना है और हम ये तवक्को करते हैं दोबारा गिनती होगी, रिकाउंटिंग के बाद हमारी जो वादिया बदली है इंशाअल्लाह वो आप सब लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं असल 45 साथ लेके आया हूँ। हमारी 7800 की लीड है और हमें हराया गया है। हम जीते हुए थे, हमें रात को 12 बजे तक 1 बजे तक हम जीते हुए थे। सुबह 6 बजे जब रिजल्ट टीवी पर चलाया गया उस वक्त हमें हरा दिया गया है। हम जब रिजल्ट देने गए हमें आरोप नहीं मिला, अभी तक हमें कोई भी फॉर्म नहीं मिला जो
हमने रात को जो है 11 बजे आना ऑफिस के निकाल दिया गया, सारी पब्लिक वहाँ पे मौजूद थी, रात तक कंट्रोल लीड के साथ जी रहे थे। एज फॉर्म 45 हमारी 7,000 की लीड है, लेकिन बेवकूफ इंसान बात भी हो जानी चाहिए, बात हो जानी चाहिए। All the honorable candidates, kindly sit down. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सरदार मोहम्मद सर डोगर है। मैं NA 132 कसूर से कौमी असम्बली का उम्मीदवार था। मेरे मुकाबले में शहबाज शरीफ थे और मैंने 6,328 वोटों से फॉर्म 45 के मुताबिक शहबाज शरीफ को अपने हल्के से हराया है, लेकिन मेरा नतीजा 48 घंटे रोके रखा और रैली फॉर्म 45 बनाकर शहबाज शरीफ को 26,000 की लीड से जिता दिया गया। ये और इसके अलावा मेरे सैकड़ों जो पोलिंग एजेंट थे उनको उठा लिया गया, झूठे मुकदमात दर्ज किए गए और धांधली के जरिए शहबाज शरीफ को NA 132 से जिताया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुजरात हल्का PC 31 टूरिंग रसल शाना साहब का भाई बात कर रहा हूँ। आपको ये जान के बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि पूरे पंजाब में सबसे ज्यादा लीड लेने वाला कैंडिडेट चौधरी रसल मछियाना 70,000 की ज्यादा लीड जो इमरान को लीड है। और इतनी धांधली की है हमारे मुखालिफ कैंडिडेट चौधरी शाफी हुसैन, जिसने सिर्फ और सिर्फ 18,000 वोट लिया। हमारी उनके साथ यही बात है कि आप अपने 45 फॉर्म अनाउंस करें पब्लिक में, और हम भी करते हैं। जो आवाम फैसला करे हम उसको तस्लीम करें, मैदान में आए, कचहरी चौक में आए, जहां पे चाहे आपकी शुरू रखें और वोट डलवाएं। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम अकील असलम, हल्का PP 182 बच्चों की डिस्ट्रिक्ट कसूर से है। मैंने ये इलेक्शन 7,000 की लीड से जीता हूँ, 7,000 की लीड से। मगर जब RO दफ्तर में 47 जारी किया गया है, मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ, उन्होंने हमें फॉर्म 47 भी नहीं दिया और उसके बाद दफ्तर से बाहर निकल के दौड़ लगा दी और दौड़ लगा के पब्लिक आप बात करें। मीडिया में जो मेरा रिजल्ट चला है वहाँ पे 32,000 मीडिया इस वक्त अपने कैमरा बंद कर रहे हैं। काइंडली आप लोग थोड़ा सा डिसिप्लिन सबको चांस मिलेगा अगर आप बात करेंगे यार इधर पकड़ा उसको, नीचे बैठा यार, सारी तरतीब खराब कर दी आप लोग। कोई पकड़ लो यार, माइक पे मैं फौजा सिद्दीकी PS 125 की उम्मीदवार खान साहब की नायब याफ्ता NA 248 और 90 से हमने इलेक्शन जीता। आप लोगों ने वो वीडियो भी देखी होगी कि किस तरीके से MCM के गुंडों ने हमारे पोस्ट कैंप के ऊपर इनॉग्रेशन पे हमला किया था। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि 34,000 की लीड से हमने MCM को वहाँ पे शिकस्त दी है। कोई दूर दूर तक हमारे मुकाबले में जो है वो लीड में नहीं आ सका माशाल्लाह। और 49,000 की लीड दी है, इसमें 34,000 की हमारी MCM से लीड है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ फॉर्म 47 में भी दिखाया गया। कहने का मकसद ये है कि RO के ऑफिस में 3 बजे से बंद कर दिया गया था, मुहावजा कर दिया गया था। कोई वकील नहीं जा सकता था, कोई बंदरगाह नहीं जा सकता था। रेंजर आर्मी वहाँ पे डिप्लॉय करनी थी। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूंगी कि फॉर्म 45 हमारे पास पूरे हैं। इलेक्शन कमीशन ने हमें दरखास्त दे दी है। हमें पता है इलेक्शन कमीशन भी हमें जो है वो इंसाफ नहीं देगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम आखिरी वक्त तक ये जंग लड़ेंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि कराची के किसी भी हल्के से, किसी पोलिंग स्टेशन से MCM नहीं जीती है। अस्सलाम वालेकुम, कर्नल शौकत फ्रॉम NA 61। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम ये इलेक्शन
थ्रू एंड थ्रू जीते हैं। एंड मैं चैलेंज करता हूँ 3 किस्म के कि अगर जो फॉर्म है उनको काउंट कर लें या दोबारा इलेक्शन करा लें या ओथ करा लें, हर लिहाज से हम इस टीम को पूरी तरह मारेंगे और हर हालत में मारेंगे। हम जीते हुए हैं और हर सूरत जीते हुए हैं। थैंक यू, बहुत मेहरबानी। हो रही है बहुत स्पीकर को स्पीकर भी खैर हम दो साइड पे होते हैं क्योंकि हम बात करना चाहते हैं। अगर हम किसी फोरम पे पहुंचेंगे ही नहीं, आप लोग अगर पीछे हटेंगे तो हम बात कर सकेंगे। प्लीज खुदा का वास्ता साइड पे हो ताकि इंटरनेशनल मीडिया को हमारी बात पता चल सके। मैं रिजवान मुस्तफा सियाल इंटरनेशनल मीडिया को पता चल गया सारा। मैंने 37,500 वोट लिए और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान के टिकट पे कामयाब उम्मीदवार हूँ। लेकिन मुझे रात 11 बजे कॉल की जाती है, अगर तुम हमारे बूट चाटोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं, वरना नहीं। लेकिन मैं इंशाल्लाह इमरान खान के साथ हूँ, इमरान खान के साथ रहूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इंशाल्लाह रहूंगा। खान के साथ जिंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैडम माइक इधर देना प्लीज। यहाँ पे फोकस कर ले, हम यहाँ से बोल के हम चले जाते हैं। किधर से बोले, किधर से फोकस करें, ये तो तरीका कार ही नहीं है जो यहाँ पे हो रहा है। ये हमने पहली दफा देखा है। ये सारे मैच ठीक है, ये लाइव है, इसके बात नहीं है। वो जरूरी है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिक इरशाद PP189 तहसील डिपार्टमेंट मिस्टर उकाड़ा। मैंने उकाड़ा से PP189 का इलेक्शन कंटेस्ट किया तो बेशुमार पोलिंग स्टेशनों में, बल्कि 134 पोलिंग स्टेशन पर जब रिजल्ट आया तो मैं 3,500 से जीत रहा था। मेरे पोलिंग स्टेशनों के रिजल्ट इन्होंने रोक लिए। रात मॉनिटरिंग जो स्क्रीन लगी हुई थी वो भी इन्होंने बंद कर दी और मुझे 2100 वोट से हरा दिया, जबकि मैं 4,500 वोटों से जीता था। मुझे ये कहा गया कि PTI की तरफ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट न करे। मैंने कहा कि मैं नजरियाती तौर पर PTI के साथ इमरान खान के नजरिए पर कायम हूँ और 13 साल से PTI में हूँ। मैं इलेक्शन हार जाऊंगा लेकिन मैं इमरान के साथ खड़ा रहूंगा। अल्लाह ताला के फजल करम से मैंने RO के पास एप्लीकेशन दी, मैंने DRO के पास एप्लीकेशन दी, लेकिन कुछ नहीं बना। मैं हाई कोर्ट में गया, फिर मैंने अब इलेक्शन कमीशन में आया हूँ और रिकाउंटिंग के लिए मैं आइडेंटिफिकेशन, वोटर आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने अप्लाई किया है। इंशाल्लाह जल्द ये रिकाउंटिंग के ऑर्डर हो जाएंगे। इंशाल्लाह ये इलेक्शन PP189 का हम जीतेंगे अल्लाह ताला के फजल करम से। मैं इमरान खान का सिपाही हूँ, इमरान के साथ खड़ा हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से। बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अकील असलम, हल्का PP 182 पत्तों की कसूर। मैं बताना चाहता हूँ मीडिया को कि मुझे 7,000 की लीड से मैं जीत रहा था। मीडिया पे मेरा फाइनल रिजल्ट अनाउंस हो गया। 32,326 वोट मैंने लिए और 7,000 की लीड थी। उसके बाद RO ऑफिस में जिस तरह से इलेक्शन मैनेज करने की कोशिश की गई पूरा हल्का जानता है। मैं वहाँ पे जब 47 जारी हुआ हमें इन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। जब मैं वहाँ पे पहुंचा RO दफ्तर से बाहर निकल के भाग गया। पूरी अल्हम्दुलिल्लाह ये इलेक्शन जीते हैं। 7,000 की लीड को कम करने के लिए 40 पॉइंट फॉर्म जारी कराए गए, उनको ट्रांसफर किया गया, जिसको मैंने लाहौर हाईकोर्ट में भी चैलेंज किया है और इलेक्शन कमीशन में भी किया है। इंशाअल्लाह आइन और कानून के मुताबिक अपनी हाजिर देंगे और एहतजाज भी करेंगे। अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है इंशाअल्लाह ताला वही अवाम का नुमाइंदा होगा और हमें ऑफर भी दी जा रही है, मगर मैं हर ऑफर को जितने की टॉप पे रखता हूँ। तहरीक इंसाफ के साथ है, इमरान खान के साथ है और इंशाअल्लाह ताला
अच्छा अच्छा वो अपने पहुंचा हो सर अच्छा सही है फैसला तो साहब है अच्छा अच्छा चलो चलो जी अभी तो बदला सी नहीं माइक से पकड़ लेना ये तो बावी का ये है जी मैडम जी जी मैडम अभी आरएस घर की मिनिस्टर आरएस घर की अभी दूसरे बताइए सर आपकी जी वैसे तो वजीरस्तान में नहीं नहीं आप लोग स्टेट में बैठे हैं ठीक है मतलब सर शुक्रिया बहुत सारी जरूर क्या ठीक है जंगा भला में उठे हैं कोशिश ही हो रही है ना एमएलए साहब ये तो चल रही है क्या ना ठीक है आप ठीक है सब अच्छा मैंने में फार्म दे हमारी शान है अभी यहाँ पे बात माइक के पीछे आके जरा बात करना आपके पास मेरे ख्याल है फार्म नहीं कंप्लीट हुआ सबको सही नहीं आवड़े तीन कैंडिडेट और कुछ चारों के 37 डबल है हमारे हाँ हाँ हमने मार्क करके सारा क्लियर कर दिया हमारे को 60 और 6 भी किस तरह है हमारे को उनके इधर अच्छा 3 ऐसे हैं जो एडजस्ट डिसमिल फैमिली थे ठीक तो सब बंदा पार्टी को नहीं थे माइक पकड़ो जी अच्छा गल करते हैं एक मिनट यार की भाई ने की मेरी भी नहीं हुई काशी इसमें माइक मिल जाता है